بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف کائنات کا پیدا کرنے والے خالق حقیقی کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا، یعنی محمد اور آل محمد پر تھوڑی سی بلند آواز سے درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ محترم سامعین، شکر گزار ہوں میں خواجہ پیڑھائی شیعہ اشناسی جماعت کے عہدیداروں کا اور اس پروگرام کے منتظمینوں کا اور برادر شاکر دیوجانی کا بالخصوص کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے یاد کیا۔ تقریباً 60 برس یعنی نصف صدی سے زیادہ میں نے جماعت میں پہلے اپنا تعارف آپ سے کروا دوں پھر آگے بڑھوں۔ تقریباً 60 میں نصف صدی سے زیادہ کا حصہ جماعت، انجمنیں، محفلیں، اردو گجراتی ادب، تحریر، تقریر، نوحے، سلام، مرثیے لکھنے اور پڑھنے میں گزار چکا ہوں۔ شہید حمید بھوجانی کے ساتھ رہ کر ان کے چلے جانے کے بعد انہی کے نام کا ایوارڈ جماعت نے مجھے دیا۔ انڈو پاک دنیا کی ان گنت ایوارڈوں کو میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی خوشی یا کوئی بڑائی میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں میں نے ان ایوارڈ جو خاص قابل احترام ہے وہ ہے میرے لیے خواجہ شیعہ اشناسی مسلم کمیونٹی یعنی ورلڈ فیڈریشن کا ایوارڈ جو انہوں نے فخر الذاکرین کا دیا، حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس کا دیا، اس ملت مسلمہ اس حکومت پاکستان کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کا ایوارڈ، اور علامہ حاجی ناجی جن کو تو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، ان کے خانوادے نے مجھے چھوٹے حاجی ناجی کا ایوارڈ دیا۔ ہندوستان ہی میں قلم اور کلام کا ایوارڈ ملا، یعنی ایک ان گنت یہ پوری وہ ہے۔ میں ان کے سامنے ان کی شکریہ ادا کرنے کے بعد کوئی بڑا پن اس لیے محسوس نہیں کرتا ہوں میں کہ پیغمبر اسلام کی ایک دعا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح بدر کے جو 2 ہجری کی، اس دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بندہ میری بڑھائی کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری بڑھائی کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا خدا، اور میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہ جس کا رب ہو اور ایسا خاتم النبیین جس کو معراج پر بھی بلائے تو عبد کہہ کر بلائے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ میرے لیے عزت کے لیے بہت کافی ہے۔ محترم سامعین، بات کرنی ہے مجھے تاریخ خواجہ اور ان کی قربانیوں کی۔ ہمارے شاکر بھائی نے جو کچھ میرے لیے الفاظ کہے میں اس کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ بیٹھے ہیں خواجہ شیعہ اشناسی جماعت کے جو یہ باہر پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اس ہال کے اندر خواجہ جماعت کا نام ہے۔ گجراتی میری مادری زبان ہے، میں نے اردو سیکھی ہے۔ لوگ چاہے مجھ سے ایسے سوال کیا کریں کہ میں نے گجراتی کہاں سیکھی، میں نے اردو سیکھی۔ میری مادری زبان میرے دوست احباب جانتے ہیں گجراتی ہے، لیکن چونکہ اس زبان سے خود زبان کے بولنے والوں نے بہت معذرت کے ساتھ زبان کے بولنے والوں نے جب تھوڑا سا بھی بے توجہی کی، اولادوں نے زیادہ بے توجہ کی۔ وہ کہنے لگے ہمارے بزرگ جن کی یہ زبان ہے
आयत उज़मा आयतुल्लाह शिस्तानी साहब का अभी का इस दौर का ये फतवा है कि हर कौम को चाहिए कि वो अपनी जबान की हिफाजत करे। जबान हमारी शनाख्त है दोस्तों। अगर हमने जबान को छोड़ दिया, हम अपनी पहचान को छोड़ बैठेंगे। मुझे ये मिसरा कहने दो कि इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बहुत सीने में इतना दुख और इतना दर्द लेकर मुनव्वर सलील आपके सामने आज मुखातिब है। परसों से 60 साल से मैंने कहा ना, ये मजलिस, ये मीलाद, ये महफिल बहुत अरसा गुजारा। और जिसने 1957 में आयतुल्लाह सैयद मोहसिन हकीम की वक्त नजफ अशरफ पर थोड़ा सा अरसा गुजारा है, जो मेरे लिए कसीर हो गया। अगरचे मेरे उस्ताद मोहतरम अब भी दुबई के अंदर है, सादिक शाह साहब, बहुत इज्जत दी मुझे, बहुत कुछ उन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद तो उलमा की सोहबत में रहकर जिस अंदाज से मैंने जो कुछ सीखा, बहुत एहसान है ऊपर वाले का। मैं इस काबिल नहीं है मुनव्वर, कोई 4 लफ्ज़ है इसमें। लेकिन जिस वक्त मैंने आंख खोली है, उस वक्त मेरे आबा व अजदाद जो है ना, वो जाकिर थे। मुझे ननियाल से भी जाकिरी मिली है, मुझे ददियाल से भी जाकिरी मिली। मेरे दादा जाकिर थे, मेरे नाना भी जाकिर। उसके बाद मेरी वालिदा जाकिरा थी। मेरे वालिद गमे आशुरा के हाफिज थे। आप कहेंगे मैंने अपनी बातें शुरू कर दी। गमे आशुरा के हाफिज थे मेरे वालिद। और मेरी वालदा 25 मुहर्रम को जब इस दुनिया से गई है, जो पहला अलम आप हुसैनी बाग में उस तरफ देख रहे हैं, 75, 76 इस हिजरी की बात कर रहा हूं, ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं, 1975 या 1976। उस वक्त भी मेरे चौथे इमाम की शहादत थी। मजलिस मुझे इमाम बारगाह में पढ़नी थी। दोस्तों, मौजू नहीं है मेरा, कोई एक चीज को मैं आपके सामने पेश करने जाता हूं तो मुझे 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए। मैं जानता हूं आपकी तकलीफों को, आप लोग बहुत मसरूफ है। मुझे अभी मेरे अजीज ने बताया कि कुछ सामेईन कम है। मैंने कहा मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में होकर आया। आप जिस कंट्री का नाम ले, मैं बोलूंगा कि मैं वहां मजलिस मैंने पढ़ी, चाहे वो मगरिब की हो, मशरिक की हो, अफ्रीका की कोई कंट्री हो। अब जिनका मैं नाम लूंगा उनके साथ मैं कैसे रहा हूं, यानी एक बहुत अजीब सानेहा मेरे लिए ये है कि मेरे दिल में जो मेरी कौम का दर्द और गम जो भरा हुआ है, मैं उसको इजहार नहीं कर पाता। इसलिए इजहार नहीं कर पाता हूं, दिल आजारी मेरा मकसद नहीं है। इस्लाह करने के लिए मैं चंद लोग मेरे आसपास उठ के बैठते हैं, उनके साथ में बैठ जाता हूं। किसने नहीं सुना अंजुमन खुदामुल कुरान का नाम? ये वाहिद एक इदारे का नाम ले रहा हूं, ऐसे कई अंजुमन है। एक वाहिद इदारा है जिसकी इब्तिदा मैंने सिर्फ 5 रुपए में की। और वो जमाना सुनना चाहते कौन सा था? 1955। कितने साल गुजार गए? तकरीबन 56 साल, 57 साल गुजार चुका हूं। 5 रुपए में कुरान मजीद को कांधे पे रखे मुनव्वर जाता था, और आज मेरे पास तीसरी नस्ल आके कुरान सीख रही है। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मेरे हक में सिर्फ इतने दुआ करें कि मोतबर हदीस है कि अगर किसी ने एक आयत भी किसी को कुरान की सिखाई है ना, परवरदिगार उसकी कब्र पे अजाब नाजिल नहीं करता। एक आयत मुझे मालूम नहीं है। अभी कब्रिस्तान के हुसैनी बाग की मजलिसों को लोग कहते थे कि 42 साल गुजर गए। 42 साल से क्या मुराद है? अगर 4 जुमे भी आप गिने 1 साल के, तो 42 को 4 से तो करें। मुझे याद नहीं आ रहा था, मजमे जो बैठे थे उन्होंने कहा, उन्होंने, आपको याद है इस मजलिस से कब से आगाज हुआ है इसका? आपने पहली मजलिस यहां पढ़ी, सैयद करबलाई साहब हमारे जो पेश नमाज थे, हसन करबलाई, वो आया करते थे, उन्होंने अलम चढ़ाया है उस जमाने में। अब ये जो दर्द है ना दिल में, वो शायद थोड़ा सा इजहार में कर सकूं। लेकिन दोस्तों, इस बात का यकीन रखें कि जो तारीख में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो मौजू मुझे दिया गया था, वल्लाह मैं जमात मेरी, मुझे बहुत फख्र है खोजा बनने में। मैं जब लखनऊ ने, फैजाबाद में, नौगंवा ने, उन जगहों पर जाता हूं तो लोग हैरान होते हैं कि आप खोजे हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं खोजा, मुझे फख्र है। हम चाहे कम से ही, हमारी तारीख कितनी ही 100-150 साल की सही, लेकिन जो कारनामा हम खोजा कौम ने अंजाम दिया है ना, वो इतना ऊपर जाकर चमक रहा है आज भी, तो उसकी मिसाल दुनिया नहीं ला सकती।
میں نے آغاز میں ایک نام دوں میری اس بات کی صداقت کی دلیل کا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جیسی تفسیر، دیکھو بہت توجہ سے لے جانا، ریکارڈ ہو رہی تقریر، منور سلیم کوئی ایسی بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ جب یہاں پشت میری لگیں گی نا تو میں پہلے ہاتھ لگا کے پھر بیٹھتا ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو پہچانوں، اپنے آپ سے ریڈ کروں، پھر میں آپ سے بات کروں نا۔ جیسی تفسیر محسن قوم و ملت علامہ حاجی غلام علی حاجی اسماعیل قرآن کی لکھی ہے، ایسی اردو میں نہیں لکھی، گجراتی زبان میں لکھی۔ درد نہیں ہوگا مجھے، میں نے درد کی ایک بات چھیڑ دی ہے نا، برا مت مانا، منور سلیل آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ علامہ حاجی غلام علی ناجی ٹرسٹ کا میں ٹرسٹی ہوں انڈیا میں صحیح، یہاں میں نے ایجوکیشن سینٹر رومن انگلش میں دے کر باہر ممالک کے بھیجا ہے، پہچانو۔ اس نے تفسیر گجراتی میں لکھی ہے، میں کہتا ہوں اردو میں نہیں ملیں گی آپ، دلیل ہے میرے پاس، جب چاہے مجھ سے مانگ لینا، یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ انجمن حسینیہ ایرانیان سورہ بقرہ کی تفسیر خطیب اہل بیت، آج دنیا نے ایسا خطیب پیدا نہیں کیا ہے، علامہ رشید ترابی صاحب سورہ بقرہ کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، بہترین تفسیر، لوگ حیران تھے۔ یہ پرانا انجمن حسینیہ ایرانیان، ابھی جو عمارت ہے اس سے پہلے مشہدی صاحب حیات تھے، آغا مرزا مہدی پویا حیات، ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ بیٹھتے تھے، تفسیر کے بعد ہم وہاں جا کر بیٹھے۔ میں چونکہ ادب کے حوالے سے ان کا شاگرد رہ چکا ہوں، علامہ رشید ترابی صاحب، وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور لفظوں، اب کیا ان کی تعریف میں آپ کے سامنے کروں، وہ لفظ پڑھتے نہیں تھے، وہ لفظ کو پیدا کرتے تھے۔ دیکھو بڑا جملہ میں نے آپ کو دیا، پہچانو اس شخصیت، دا فاؤنڈر آف دا ورڈ، ہی واز فاؤنڈر آف دا ورڈ۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ہم پوچھتے تھے ان سے، اور اعتماد کی بات پوچھتے ہو، پورا آپ کا ٹیلی ویژن کا وجود نہیں تھا، پورا آپ کا ریڈیو پاکستان بمبئی بازار کے کھارادھر کے امام باڑے کے باہر کھڑے رہتا تھا، زید بخاری ڈائریکٹر تھے، ذوالفقار بن بخاری، اناؤنسمنٹ ہوتا تھا یہی ریڈیو پاکستان سے، میں نے اس میں 5 روپے پہ میں نے کام کیا، وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتا تھا کہ اب ہم آپ کو کھارادھر کے بڑے امام بارگاہ لے جاتے ہیں، علیکم السلام، جہاں سے آپ مجلس شام غریبہ سنیں گے، خطیب ہے علامہ رشید ترابی صاحب۔ اس کے بعد پورا ریڈیو پاکستان جو گاڑی کے اندر انسٹرومنٹ لگے رہتے تھے اس میں آ جاتا تھا، پورا ریڈیو پاکستان اس گاڑی میں ہوتا تھا، سوئچ آن ہوا نہیں، وہاں سے رشید ترابی صاحب نے تقریر شروع کی، وہ جو بولے وہ دنیا سنے گی، کوئی سینسر کی ضرورت نہیں، کوئی پہلے ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں۔ آج میں ٹیلی ویژن پہ جاتا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں لوگ کیا وجہ 2 محرم کو 3 محرم کو شام غریبہ کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں جواب ہے میرے پاس، معاف کر کے مجھے میں جانتا ہوں نہیں دے سکتا جواب، پورا ریڈیو پاکستان وہاں سے جاتا تھا، جو ترابی صاحب کہے وہ دنیا سنے، ایسے خطیب نے۔ بات روک لو یہیں پر، یہ تو میں نے ایسی تعریف کر دی چونکہ ادبی شعبہ میرا ہے، ادب سے میرا بہت گہرا تعلق رہا، یوں میں کہوں تو بھی کوئی وجہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کہ مجھے فی البدی کہنا سکھایا انہوں نے، اور قمر جلال۔ اگر میرے دوست احباب میں سے کبھی بھی اس کے بعد بھی مجھے کوئی مصرع دیں گے، کلام لے جائیے، ہے نا کہ میرے عزیز اقبال بھائی نورانی بیچارے کبھی مجھے استاد کہہ دیتے ہیں، میرے مدد قرآن آتے تھے، میرے گھر پر آتے تھے، تقریریں میرے پاس آ کے سیکھی، یہ بیٹھے میرے سامنے گواہ ہے، ان کی بات نہیں کروں، ان سے کہا جب تاریخ لکھی جائیں گی نا اس وقت یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے میرے کہ وجہ کیا ہے، کیوں کھوجا قوم کے لیے، آپ کیوں ایسی باتیں کہاں سے باہر سے آ رہی ہیں، یہ مرض کہاں سے داخل ہوا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کر سکتا وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا، ایکسپریمنٹ کرنے والے ڈاکٹر بہت ہیں، 5-7 ٹیبلٹس وہ آپ کو دے دیں گے، بخار ہے، سردی ہے، نزلہ ہے، موشن ہو رہے، آپ ہم سب جانتے ہیں گھروں میں کس کے پاس ایسی ٹیبلٹس نہیں ہیں، وہ 6-7 ٹیبلٹس دیں گے، کوئی ایک ٹیبلٹ تو ضرور کام آ جائیں گے، جس کو ایک مقولے میں کہتے ہیں کہ اندھیرے میں تیر مارنا، لگ گیا بھائی، بڑا اچھا تیر انداز ہے یہ تو یار، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ ایکسپریمنٹ کی ٹیبلٹس دے رہا ہے، وہ ڈائگنوز کرے پہلے وہ بیماری کو سمجھے کہ بیماری ہے کیا، پھر اس کے بعد وہ علاج کرے نا۔ مسئلہ یہاں کے رہتا ہے ہمارے، آج میری قوم کے لیے بھی مسئلہ کے کھڑا رہ گیا ہے، یہ زبان پہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، گجراتی زبان پر، یہ آپ کو پتا ہے، میں نے علامہ کا نام لیا، رشید ترابی کا، وہ سورہ بقرہ کی تفسیر پیش کی، جب ہم کمرے میں آئے استخوان چائے ہمارے لیے آتی تھی، قبلہ آ کے بیٹھے مولانا ترابی صاحب، آغا مرزا مہدی پویا، ہم نے کہا
शागिर्द रह चुके थे। मैं कहा क़िबला आज की जो आपकी तकरीर में जो सूरह बकरा की तफसीर थी, देखो रिकॉर्ड हो रही है जुमला, हाँ जब चाहे मेरा गिरेबान पकड़ लेना। क़िबला आज जो आपने तफसीर पेश की सूरह बकरा की, नाज करो नाज दोस्तों, दुरूद में सुनूंगा इस जुमले के बाद आपसे, फकर का दुरूद सुनूंगा, खुदा का शुक्रिया करने का दुरूद सुनूंगा आपसे। मैंने कहा क़िबला आज की तफसीर का तो जवाब ही नहीं था, क्या तफसीर सूरह बकरा। थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगे ये सब खोजा कौम की मरहून मिन्नत है, पढ़ लो दुरूद, पढ़ दो, अब पढ़ दो दुरूद बाबा जब। कितना बड़ा खतीब, मैं भी कहता हूं पैदा नहीं किया ऐसा खतीब, नस्ल में भी नहीं आती, ये तो आले मोहम्मद की फजीलत कुछ और है। नबी का बेटा बेटा अजीब होता है, नबी तो न बने कातिल हो जाता है। ये ऐसी चीजें नहीं मिलती जो अल्लाह दाद चीजें होती है ना, इनके फर्जंद आए, नस्ल में आई, मगर वो खिताबत नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। आप सुनते रहते हैं मुहर्रम के दिनों में सजदा, यकीन, दुआ, और इतनी कितनी तहारीर उसकी। जिस जमाने में टीवी था तब तो ये रिकॉर्ड में रह गई, महफूज वो लगाते हैं, लेकिन वो जब टीवी नहीं था उस वक्त की तकरीरें नायाब तकरीर। मैं अगर उस पर चाहो तो 1 घंटा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत करीब रहा हूं, मेरे उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं। मैंने कहा वर्ड्स फाउंडर थे बोला साहब। मैंने कहा खोजा कौम के मरहून में मिन्नत। कहने लगे हाँ बेटे, मैंने जो तफसीर पढ़ी है ना वो आपकी मुझसे कहते हैं, आपकी खोजा कौम की मरहून मिन्नत। खामोश। ये कैसे कि अल्लामा हाजी गुलाम अली ने जो गुजराती में तफसीर लिखी है ना, मैंने उसको उर्दू ट्रांसलेट करा के ये तफसीर पेश की। सोचो दोस्तों, पहुंचो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे दरमियान में बीच में से गुजर रहा हूं, आखिरी इंसान को मैं देख रहा हूं, मैं आपके दरमियान से गुजर रहा हूं। मुझे कभी ये नहीं सोचा कि मेरे सामने एक बेटा है कि 1000 बेटा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उसको बिलखुसूस हाजिर और नाजिर रखकर ये पैगाम हक्का जो है शीयत का वो आप तक पहुंचाऊं कि क्या हुआ है हमारे साथ। ये तफसीर हम आज उर्दू से गुजराती ट्रांसलेट करते हैं, और करने में भी गुजराती, किसी को किताब दो तो कहते हैं गुजराती, मुझे माफ कर, मैं गुजराती नहीं जानता। ऐसी नया तफसीर फिर कहता हूं आज तक नहीं है, वरना ये खतीब कोई और तफसीर लिखता और तफसीर को पेश करते, और आज भी ये तफसीर नायाब। तफसीर कुरान फिल बयान 10-10 सिपारों में थी, फिर हमने उसको ट्रस्ट के जरिए से 15-15 में 2 जगह की, अब 1 जगह भी हो गई, और 2 जगह भी और 3 जगह एक साथ में नहीं उठ सकती है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। कभी आपको मौका मिले 5 सिपारों की तफसीर पढ़िएगा, और फिर किसी और इब्न खल्दून को पढ़ना, नमूने को पढ़ना, जिनकी चाहे आपको तफासिर बहुत ही अच्छी तफसीरें लिखी गई है। हमें किसी मैं अपने खोजा कौम की बात कर रहा हूं, और ये जुमला नजर करता हूं रिकॉर्ड के अंदर कि अगर कोई दूसरा मुफस्सिर कुरान खोजा आपके पास हो तो मुनव्वर सलील की तो इस्लाह जरूर कर दे। खोजा अब भी बोल दो मुझे कि हाँ मुनव्वर भाई, एक खोजा और है जो शायद आपके इल्म में नहीं है, जिसने कुरान मजीद की तफसीर लिखी हो, मुझे इस वक्त यहां ये कुरान पे हाथ रखे मुझे इस वक्त बता दो, तो मैं कम से कम अपनी इस्लाह तो कर लूंगा ना। आप झूठे नहीं, आप सच में अपनी इस्लाह करो। इकबाल भाई, है आपका जहन में कोई खोजा कि जिसने तफसीर लिखी हो कुरान की? कोई खोजा आपके जहन में है जिसने तफसीर लिखी हो? नहीं। अगर आपके जहन में आए तो मैं अपनी इस्लाह करूंगा ना, और लिखी भी होगी ना, खुदा उसको सलामत रखे। मेरे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिखी भी होगी तो इस तफसीर, आप ऐसी तफसीर आएगी जब उर्दू दां आपकी तफसीर गुजराती में लिखी हुई तर्जुमा कराए। दोस्तों मुझे माफ करें, बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा इन चीजों में। बहरहाल जो उन्वान मुझे दिया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ी सी जहमत दूं आपको कि जो 2-4-10 मुझे वो दूर नजर आते ना, अगर इन कुर्सियों पर आ जाएंगे ना तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों थोड़ी सी जहमत आपको जरूर होगी, इंशाल्लाह हम उसके वक्त पर ही खत्म करेंगे प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई मजबूरी अगर ना हो तो जरा सी इन कुर्सियों को पूर्ण कर दें। अगर कोई मजबूरी ना हो, मजबूरी है तो माफ है आप लोगों को। आप तक आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन मेरे दिल को थोड़ी तकवीयत रहेगी। बहुत शुक्रिया। अब बुलंदतर दुरूद पढ़ दे आप हज़रात जरा बाबा। जो उन्वान मुझे दिया गया है बहुत पहले बेचारों ने, मगर वक्त इजाजत नहीं देता था, कोई वक्त बड़ी किल्लत रहती है। 2-3 घंटे 24 घंटे में सोना मिल जाए तो गनीमत है। तो पता नहीं ऊपर वाला चला रहा है। 72-73 साल का मुनव्वर आपके सामने किस तरीके से आया है वो ऊपर वाला जानता है। उसने भेजा है, वो जब बुलाएगा उसकी बारगाह में चला जाएगा।
मेरे दोस्त अजीज जो यहाँ देख रहे हैं उनको मालूम, मैं जितनी सफरें करता हूँ मेरे साथ दो चीजें होती हैं, एक मेरा कफन, एक मेरा वसीयतनामा मेरे साथ, मालूम नहीं जहां। तो अब मुझे माफ कर देना अगर कोई चीजों में इसमें आपको दिलाजाती तो नहीं होगी, वो गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों ये उन्वान ऐसा है, तारीख ख्वाजा और उनकी कुर्बानी। इतनी वसअत है इस उन्वान में कि मैं एक प्रोग्राम में तो आपको कैसे बता सकूं। लेकिन बारह जो कुछ मैंने अपने हिंदुस्तान की किताबों से, इसलिए कि मेरी 73 साल की उम्र है, लेकिन हमारी तारीख 125 के इस इर्द गिर्द, 125, 130, 140 है ना। और आज से 5, 7, 10 साल पहले वर्ल्ड फेडरेशन की, या उससे थोड़े परसेंट ज्यादा हो, मेरे साथ में थे मुल्ला असगर MM जाफर, बड़े काबिल आदमी, वर्ल्ड फेडरेशन को ऐसा आदमी नहीं मिला। वो मुझे कहते थे कि हमारी ख्वाजा कौम की टोटल पूरी दुनिया में जो ख्वाजा कौम है वो 1,24,000 है। कितनी है? 1,24,000। मैं मजलिसों में अफ्रीका में था, वो मेरे साथ थे, किसी और जगह पढ़ रहे थे, फिर मुलाकात हुई, वापस 2 रोज मेरे साथ रुके। मैंने कहा मुल्ला साहब ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने एक एक खोजे के लिए एक एक पैगंबर भेजा है। 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 के खोजे, इतने दुनिया में छाए, शायद कुछ गिनती में फर्क महसूस हो रहा है। बहुत हो गए भाई, मैं दुनिया देखकर आ रहा हूं, दुनिया में खोजे बहुत है माशाल्लाह, लेकिन उनका ये रीडिंग थी 10-12। अभी मैं कहता हूं कि हमारा एक, मैंने कहा ना मेरे सामने एक बैठा है वो 1,000 के बराबर। मैंने कभी मजमा नहीं देखा। मैं अक्सरियत को मानता ही नहीं, कुरान नहीं मानता है तो मैं कहां से मानूंगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अक्सरियत इंसानियत की घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जिस पर मैंने पूरी 5-6 मजलिसें दी है। क्या 4 सिफतें वाला क्यों नहीं है? बहरहाल तकरीर दूसरी मजलिस की तरफ चले जाएंगी, इल्मी हो जाएंगी। बहरहाल मुझे जो उन्वान दिया उस पर बात करने दे दोस्तों। ये हमारी तारीख जो है ना दोस्तों, बहुत आराम के साथ सुनना, मैं आपको आधे घंटे से ज्यादा जहमत नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। कुछ काट भी डालूंगा चीजें, अगर आपकी जहमत होगा मुझे ज्यादा ख्याल। 130 साल के आसपास की ये तारीख है ख्वाजा कौम। इनमें 2 अहम शख्सियतों का, ख्वाजा कौम और फ़िक़्ह जाफरिया पर बड़ा एहसान है। ईरान के रहने वाले आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हसन नजफी साहब, जिन्होंने बंबई के खोजों को यह बताया कि मज़हब हक़्क़ा क्या, जिन्होंने उर्दू सीखी हमारे लिए, खोजों के लिए। परसों मैं बचपना था मेरा, मैं उनके मदरसे में जाता था, एक वो शख्सियत और एक मोहसिन कौम अल्लामा हाजी गुलाम अली हाजी इस्माइल। आप किसी खोजों के घर में जाके, खवातीन तक ये कैसेट पहुंचे या आवाज जा रही हो, उनसे पूछे कि उनके घर में मजमुआ है कि नहीं, दुआओं का मजमुआ, अल्लामा हाजी गुलाम अली का लिखा हुआ है ये मजमुआ। ये औरतें, हमारी खोजी औरतें जो अरबी नहीं जानती, वो दुआएं कैसे पढ़ती, वो ज़ियारतें कैसे पढ़ती। इतना ही नहीं कि मजमुआ दिया, उसके बाद उन्होंने आइन और अलिफ के फर्क को बताया है गुजराती जबान में। इराकी औरतें ताज्जुब करती थी कि ये कौन सी जबान है इनकी जिसमें ये ज़ियारत इज़्न दुखुल पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर ये आ भी पढ़ रहे हैं और अ भी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान है ये दो लोगों का, हमारी ख्वाजा कौम का। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हसन नजफी, बंबई के अंदर इस वक्त जो कुछ भी मजहब की नजर आ रहा है ना आपको, वो इनके बोए हुए बीज का नतीजा है। उनके वालिद मोहतरम का जवाब नहीं, उसकी नस्ल में आने वाले उनके बेटे आयतुल्लाह जवाद का भी जवाब नहीं। इब्तदाई दौर में जिनका लहू, खून, पसीना नहीं, हमें बहुत, क्या बताऊं, लफ्ज जबान पे रुक जाता है। पकी हुई रोटी के मानी पला हुआ इस्लाम मिल गया, भोजानी होल तैयार हमको मिल गया है, कुर्सी तैयार, मेरे लिए तैयार। कभी सोचो इसके पीछे क्या मेहनतें, इस कौम के पीछे पसीना नहीं दिया गया। ये ख्वाजा कौम ऐसे नहीं बनी। हम हिंदू से जब इस्माइली बने, इस्माइली से जब इस्नाशी बने, एक पूरी हिस्ट्री है हमारी कौम की, ख्वाजा कौम की दोस्तों। और ख्वाजा के 2 मानी लिए गए। एक खोजा के मानी उस दौर में 150-125 साल के पहले लिया गया, खोजा, गुम हो जा, खो जा। दूसरे खोज के लिए गए,
खोज कहते हैं ढूंढने को। भाई क्या खोज रहे हैं आप, क्या तलाश, उर्दू में उसको तलाश कहते हैं, फॉर्म, वो तो आर फाउंडिंग ईयर। तो खोज उसमें भी आया है। और उसमें वो मियाना जो थे, जिसको मयाना मयाना करते थे, वो हिंदू थे, उन्होंने ख्वाजा भी निकाला है, जो बाद में इस्माइली कौम में भी रहा। वो ख्वाजा रहा, खोजा रहा, गुम हो जा रहा, ढूंढना रहा। ये सारी चीजें रहने के साथ में इब्तदाई दौर जिस वक्त हम इस्माइली से इस्लामी बने, जिनका लहू इस कौम के लिए, ख्वाजा कौम के लिए, जमात के लिए काम में आया है ना, उनके नाम बताऊं आपको? किल्लू खटाव, किसी भी नहीं सुना। तस्वीर देखनी हो आपको, बंबई के अंदर ख्वाजा जमात में लगी हुई किल्लू खटाव, सर फहरिस्त है जिनकी तस्वीर आज भी बंबई की जमात में लिखी हुई तस्वीर है। और उसी शहीद का खून उस मस्जिद के अंदर, जो ख्वाजा मस्जिद पाला गली में है, उसकी बुनियाद में डाला गया है। उसके बाद शहीद हिरजी अला रखा भाई, दूसरा इसी मस्जिद की, शहीद लालजी भाई साजन, अब्दुल्ला भाई लालजी, कासम अली भाई नानजी, ये जख्मी हो गए थे, शहीद नहीं हुए, उसके बाद इंतकाल हो, 12 शहादत पाली। ये वो अशखास है कि जिनमें से एक शख्स के जो खाली किल्लू, ये हमारे हाजी कल्लू था, ये किल्लू था, एक और किल्लू था कि जो उस वक्त मुल्ला कादर हुसैन करबलाई की दुश्मनी में थे। और ये वो शख्सियत है मुल्ला कादर हुसैन करबलाई, इनके भी बड़े एहसान हैं हम पर। इन्होंने अल्लामा हाजी नाजी हाजी गुलाम अली इस्माइल को बुलाया बंबई में, नजफ में ये उस्ताद रह चुके हैं मुल्ला कादर हुसैन करबलाई, उनका मदरसा आज भी बंबई के अंदर है। लेकिन मुल्ला कादर हुसैन की फिका की, मजहब हक की उन पर इतनी असर हुई उस किल्लू पर कि जब मदरसे में एक और शख्स को तय किया गया कि इनको कत्ल, जब एक और शख्स को तय किया गया, वो किल्लू नाम से अलग था, कि आज वो मदरसा है बंबई में, कि जाकर मुल्ला कादर हुसैन को कत्ल किया जाए। ये तारीख है आपकी और मेरी कौम की। ये मोहसिनों का नाम लिया जो मैंने आपके, उनकी तस्वीरें आवेजा हैं जमात में आज भी, कि जिनका खून बहा है। ऐसे ही नहीं मिली है ये चीजें दोस्तों। मैं अब इल्मी तकरीर करने कहां बैठा हूं आपके सामने। आप लकड़हारे को लकड़ा देंगे तो वो कुर्सी बनाएगा, वो ये बनाया, ये बनाया। आप जो बोलेंगे डाइनिंग टेबल बना देगा, पलंग बना देगा। जो कारपेंटर है, आपको लकड़ा प्रोवाइड करना है ना, आपको कारपेंटर मिल जाएगा। मैं आपको उससे आगे ले जाने की कोशिश करना चाहता हूं, आज नहीं, कभी मेरी जिंदगी रही, कि लकड़हारे को, कारपेंटर को आप लकड़ा दे के जो कहेंगे वो बनाएगा। लकड़ा उसने नहीं बनाया है। मैं आपको लकड़े के खालिक को ढूंढना चाहता हूं। तो मैंने दुआ में आगाज में कहा ना, ऐसे ही नहीं कहा है मैंने कि मुझे इन अवार्डों को कुछ नहीं, शहीद हमीद भोजानी का अवार्ड क्या, या फखरुल जाकिरीन का क्या, या ये इस हुकूमत ने प्राइड ऑफ, मुझे कुछ, मेरे सामने मालिक तू मेरा खुदा है, इतना बड़ा अवार्ड, तू मेरा रब है, तू मेरा पालने वाला है, मुझे दुनिया की क्या फिक्र है। और उसी दुआ के अंदर हुजूर की 2 हिजरी के अंदर हुजूर की दुआ का जुमला है, खुदा बंदा उसने क्या पाया कि जिसने तुझे खो दिया। ये सुबह बद्र 2 हिजरी की दुआ हुई। उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, उसने क्या खोया जो तुझको पा गया। पढ़े इन दुआओं को दोस्तों, बड़ा जखीरा हमारे गैर के पास नहीं है, सिर्फ शियों के पास है। अब मैं ख्वाजा जमात से बात कर रहा हूं, ख्वाजा कौम से मुखातिब हो रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप इनको देखें कि ये क्या क्या चीजें हैं जो कहां से चली। वो कल्लू जिसको खास तौर के ऊपर तय किया गया, वो मुल्ला कादर हुसैन के मदरसे में आने के बाद जब उसने तकरीरें सुनी मजहब हक्का की, वो बदल गया। उसने अपने जहन को चेंज कर कर अहले बैत के मजहब पर आ गया। बंबई में लोगों को पता चल गया कि अब मुल्ला कादर हुसैन करबलाई का खून नहीं कर सकते। एक और को तय किया, इत्तेफाक से उसका नाम भी कर लिया, वो पहुंचा मदरसे का। अभी आगाज ही नहीं हुआ था कि वो कल्लू के जो पहला था जिसने अपने अकीदे को मजहब अहले बैत पे लाया, उसने उस कल्लू का वहीं पर खून कर दिया। तारीख नहीं, हिस्ट्री है आपकी, वहीं पर खून कर। लोग जमा हुए
पुलिस जो कोई सरकार थी आई उस कल्लू के ऊपर कि जिसने अपने आप को इस्माइली से इस्नाशी कन्वर्ट किया था। अब बात आ गई है लफ्ज़ इस्माइली की, तो सुनते जाओ। मैं प्रिंस से मिल चुका हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर, उसकी डिस्कसिंग है मेरे पास। मैं फ्रांस में जब 7 साल गया हूं ना, तो मैंने किताबें अपनी रखी और वो मुझे बहस नहीं करनी सब्जेक्ट। लेकिन आप बात आई बंबई की तो देख लो, कभी जाना हो तो देखिएगा। खड़क के ऊपर जमात खाना, उस जमात खाने में आप बिल्कुल आराम से जाएं, हजरत अब्बास का अलम नजर आएगा, इमाम हुसैन की जरी नजर आएंगी, उनके आबा व अजदाद की तस्वीरें नजर आएंगी, हजरत अब्बास का हौज नजर आएगा कि जो मन्नत की जाती है। मैंने तो सिर्फ एक ही सवाल, अभी आगे बात तो सुन लो। मॉस्क इज द मॉस्क, जमात खाना इज द जमात खाना ओनली। दैट इज नो आर्ग्यूमेंट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन कि हुज बिलोंग फॉर दिस जमात खाना, हुज बिलोंग फॉर दिस मस्जिद, हुज फॉलोवर फॉर दिस मस्जिद। नथिंग। ये अल्लाह का घर है, घर है अल्लाह का, खलास। जैसे नमाज पढ़नी हो पढ़ो। और यही चीज ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के पास जब सवाल आया था कि हम कैसे नमाज पढ़े, कि जैसे पढ़नी है पढ़ो। और ये जुमला मैंने लारकाना में दिया था, हुक्मरानों का नाम छोड़ दो, कि मुझे ताज्जुब है उन आलिमों पर कि जो लड़ते झगड़ते हैं कि ये हाथ बांध के नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते। भाई उस पर भी तो बात करो जो नमाज ही नहीं पढ़ते, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बात तो उस पर होनी है ना भाई, कबूल करने वाली जात तो वो है। सब मुसलमान हमारे भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कबूल की जात उसकी है, किबला वही है हमारा, किताब वही है हमारी। छोड़े कोई कह दे कहां गई क्या गई, कुछ यही किताब है हमारे घर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जमा, क्या वो जमा कुरान मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वरना मैं आपको 1 घंटा लेता कि जमा कुरान कहां से हुआ ना, कैसे हुआ ना, किसे, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं तो आपको सिर्फ तारीख खोजा बताना चाहता हूं, और उसके मोहसिनों की बात पर आ गया था मैं। तो वो जमात खाना है, तो वो जमात खाना भी जमात खाना, ये भी जमात खाना है। मेरे में से मुझे याद नहीं कि आप में से कोई जमात खाने में गया हो या जा सकता भी हो। कि भी पे मैंने इसलिए वजन दिया है कि मैं होकर आया, में से नहीं, इजाजत नहीं। आस्क दैट क्वेश्चन before 12 or 13 years. The one best of the Mukhi was with me in the plane. He was dying. I asked in presence of that Mukhi, कि sir, one thing I asked him, कि ये जमात खाना, then in Bombay there is a permission, everybody can go, but why here Karachi is the prohibited? Why we are not allowed to go this jamaat khana? What's the reason? He asked in presence of that Mukhi myself, कि please reply to this. मैंने अपनी जो किताबें मेरे पास थी तो मैंने पेश की। उनके आबा व अजदाद का शजरा पूरा मेरे पास है, जब कभी मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में करूंगा। भारत आज का मौजू मेरा हट जाएगा। उस कल्लू ने मतलब उस कल्लू के ऊपर मर्डर का केस होगा, जो नाम आप याद रखिएगा, जिसमें खून बहा है इस मस्जिद के लिए। और जो कल्लू मजहब बदली करके आया, तीसरे दिन वो मदरसे के अंदर मजलिस हो रही थी। देखो ये मौजिज़ा, मजलिस हो रही थी, मुल्ला कादर हुसैन मजलिस पढ़ रहे थे। उन दिनों में अज़ाए हुसैन के मौजिज़े बहुत होते थे, मजलिसों के मौजिज़े। जो मजमा बैठा था उनको मुल्ला कादर हुसैन करबलाई ने कहा कि आप क्या रो रहे हो हुसैन के गम में। मजमा रो रहा था, अज़ाए हुसैन, आप क्या रो रहे हो हुसैन के गम में। ये दीवारें जो है ना मदरसे की, वो रो रही। लोगों ने देखा कि दीवारों से आंसू बहने लगे। मौजिज़ा नहीं है तो हुसैन का क्या है दोस्तों। मैं तो अपनी तकरीरों में कहते हुए आया हूं कि मत पूछो अब ये सवाल कि दीन क्या है, हुसैन क्या है, मत पूछो। ख्वाजा अजमेरी से पूछो ना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उसने तो बात ही खत्म कर दी नहीं कि दीन हुसैन, हुसैन दीन है, खलास। दीन हुसैन है, हुसैन दीन है ना। शास्त्र हुसैन किसका नहीं सुना हुआ है, दीन हुसैन दीन है। इस रुबाई की चाहिए आधा घंटा, मुझे इस रुबाई के लिए आधा घंटा चाहिए मुझे, कि जिनके एक एक लफ्ज पर मैं आपको समझा सकूं कि ख्वाजा अजमेरी ने इस लफ्ज को क्यों यहां इस्तेमाल किया और इस लफ्ज को वहां क्यों इस्तेमाल किया। क्योंकि अदब से मेरा ताल्लुक है, वजन को मैं जानता हूं, बहुत वजन पर है ये शास्त्र हुसैन बादशाह को, लेकिन लफ्ज जो इस्तेमाल किए ना उसके अंदर एक बहुत गहराई छुपी, बहुत गहराई छुपी खाली, तो बात ही खत्म हो जाती है। ये बच्चे ना करो इन चीजों को दोस्तों। दीवार से मुल्ला कादर हुसैन करबलाई के मदरसे में आंसू बहने लगे। आज है वो तारीख और वो मौजूद है। उस मदरसे के अंदर मुल्ला कादर हुसैन को जब ये देखा गया कि ये दीवारों से आंसू, बोले बड़ा मौजिज़ा है, इनकी तकरीर का नहीं, ये हुसैन के जिक्र का मौजिज़ा है। देखो जाकिर का कमाल नहीं होता, जिक्र का कमाल। जाकिर कोई आ जाए, जिक्र हुसैन मौजिज़ा, जाकिर मौजिज़ा नहीं है तो कभी ये बात नहीं सोचेगा। अच्छा, अब बंबई के अंदर उस जमाने के अंदर
जिस वक्त शेख मोहम्मद हसन नजफी साहब ने मस्जिद के अंदर खिदमत देनी शुरू की, उर्दू सीखी है, बाबा देखो, बाबा मैं बोलता हूं, बाबा ईरान के रहने वाले थे और उनको दफन भी किया गया है कुम, जहां ताहिर जरवली साहब है। तख्तियां लगी, लेकिन मुझे याद है, आई वॉज देयर, मुझे सब याद। हिस्ट्री मुझसे पूछो ना, वो पूछे ना मुझे क्या है, कहां से लाया हूं, 25 रुपए की खरीदी है कि मैंने सिलाई, आप क्या अंदाजा करेंगे? मत छेड़ा करो, मैं बहुत ही गमज़दा हूं और जो दर्द मेरे दिल में मैं नहीं चाहता हूं, ये मैं कब्र में ले जाना चाहता हूं, नहीं छेड़ूंगा यहां पर, आपसे भी नहीं बात करूंगा, लोगों से भी बात नहीं करता, लेकिन दर्द है, आपको तस्लीम करना है। ये क्या है? बोले फ्लावर है, झूठा सच्चा बाद में तय करना, पहले फूल तो तय करो, सुर्ख रंग पे तो आ जाओ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये नकली है कि असली है। आप तो पहले सुर्ख रंग के ऊपर ही कायल नहीं हो रहे हैं। मैं भी हमारे बेचारे वो शाकिर भाई से कह रहा था कि जिस दीवार पर पेम्फलेट आवेजा करने की मनाही होती है ना, वहां एक पेम्फलेट जरूर लगा होता है कि यहां पेम्फलेट लगाने की मनाही है। क्या करेंगे बताइए? लगा होता है कि नहीं? मुझे बताए ना, बिल्कुल लगा होता है, यहां पेम्फलेट करने की मनाही। अब ऐसे आलम में बहरहाल ये चीज हट जाएंगी। उन्होंने, शेख मोहम्मद हसन नजफी साहब ने एक मदरसा कायम किया, मेरा बचपना था। उस मदरसे का नाम था इखवानुस सफा। क्या क्या हीरे उस मदरसे से निकले हुए। इखवानुस सफा ऐसा मदरसा था कि उसी मदरसे से मरहूम सुल्तान बोलू भाई निकले, क्या कहना, जमात के सदर रह चुके बंबई के, और इस अंदाज से उन्होंने खिदमत दी है कि बंबई के कब्रिस्तान को एक रौनक बख्शी। बिल्कुल मुरीद बनकर उन्होंने कहा कि अहले बैत के मजहब को मैं लेता है। खुदा ने बहुत दिया था उनके फर्जंद भी आज मौजूद है बंबई के अंदर। और उन्हीं के साथ में हाजी दाऊद नासर भाई के बेटे रोशन भाई ने बचपना गुजारा है। और बंबई के शेख साहब के साथ में दाऊद हबीब, ये हबीब फैमिली जो हमारी है ना, उसमें दाऊद सेठ के बेटे हबीब और हबीब के बेटे मोहम्मद अली, और ये एक सिलसिला है। दाऊद सेठ ने, यानी दाऊद सेठ कहता हूं मैं कि दाऊद सेठ इसलिए थे वो कि उन्होंने बड़ा हिस्सा दिया है। उन्होंने इस मौलाना सैयद इब्न हसन नजफी साहब के साथ में एक पूरी सफर की है, वो सफरनामा मौजूद है, शायद इकबाल भाई ने पढ़ा हो, वो सफरनामा मौजूद है। वो वसीयत कर रहे हैं, ए दाऊद, बराबर इकबाल भाई आप तस्दीक, ए दाऊद ये करना, ए दाऊद यूं करना, ए दाऊद। ये हबीब खानदान के बड़े बुजुर्ग जिनकी नस्ल से नस्ल चले आ रही है, चौथी पांचवीं पुष्ट पे अभी इस वक्त जो हमारे साथ रहती है, ए दाऊद ये करना, ये नजफी साहब, वो उनके साथ में रहे। उस दाऊद हबीब उनकी एक फसल में है, किस बाप का नाम, दादा का नाम, उस दाऊद हबीब ने नजफी साहब से कहा कि मेरे पास, उनके पास एक मोटर थी उस जमाने की पुरानी, मैं आपको वहां से, यानी ये जे हॉस्पिटल के सामने पहली मंजिल पर एक इखवानुस सफा का मदरसा, दूसरी मंजिल पर ये रहते थे, मैं आपको लेने के लिए। उन्होंने इनकार किया, कहा मैं आ जाऊंगा। जब दाऊद भाई ने बहुत ही वो किया, दूसरे दिन एक घोड़ा गाड़ी में ही आ गई, पूरी जमात परेशान कि बंबई की मस्जिद के अंदर, जमात की मस्जिद में ये मौलाना घोड़ा गाड़ी में कैसे आ गए नजफी। उतरने के बाद पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तारीख बता रहा हूं, खोजा नहीं था वो घोड़ा गाड़ी वाला, हमारे मसलक का भी नहीं था। 12 या 13 साल के बाद तकरीबन जब मेरा वापिस उससे मुलाकात हुई ना, एक बहुत बड़ा ताजिर बन चुका था। अल्लाह ने शेख साहब को यह तौफीक दी थी, जिन्होंने हमारी कौम को संभालने के लिए की। इनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं हो सकती। और इन्हीं जो इन्होंने सुहाना कब्रिस्तान बनाया है, जो बजगांव पे नारियलवाड़ी उसको कहते हैं, आप रे रोड पर उतर जाएं हिंदुस्तान में और चलते हैं। अच्छा, ऐसे मौलिम के जिन्होंने अपने साथ रहकर जो भी कारनामे अंजाम दिए हैं। इनके बाद एक आए मौलाना आशिक अब्बास, पांव से माजूर थे, इकबाल भाई को ये नाम बहुत अच्छी तरह याद, बड़ी खिदमत दी हमारी जमात, हमारे नहीं थे, बड़ी खिदमत दी, खोजा कौम को जमात दी। शेख जवाद नजफी इनके बेटे थे। बड़ी तकरीबन 130-140 साल की तारीख में इनमें मुल्ला कादर हुसैन करवाले की, जो मैंने बड़े सारे नाम की, जिनके नाम से आज भी मदरसा चालू है, लेकिन उन्होंने मरजाए तकलीद जो उस दौर में उसके हुक्म के ऊपर अल्लामा हाजी नाजी को इस मदरसे के अंदर भेजा। अल्लामा हाजी नाजी मुल्ला कादर हुसैन के जूते उठाते थे। मुल्ला कादर हुसैन कहते थे कि गुलाम अली कहते, उनका नाम गुलाम अली, एक दिन आएगा कौम तुम्हारे जूते उठाएंगे, तुम उस काबिल बनोगे, ये एहसान है। उस जमाने में उन्होंने बंबई के अंदर महफिल इस्लाम, महफिल हुसैनी
महफिल हैदरी और ख़वातीन के लिए महफिल फातिमिया का आगाज़ किया। आज उस दौर की एक महफिल कब्र बनी हाशिम में जब मैं मजलिस पढ़ने बैठता हूँ तो खिड़की इतनी खुली होती है कि ज़रा पीछे जाए तो पढ़ने वाला गिर जाए। वो पुरानी कदीमी महफिल आज भी वहाँ पर मौजूद है। हम हिंदू से इस्माइली कौम में आए, इस्माइली से इशनाशी बने। ये छोटी जमात और बड़ी जमात के कुछ मानी नहीं होते। मैंने ये इसलिए 2 रिसालों का हवाला दे रहा हूँ, 7 साला है इशनाशी का और एक हिस्ट्री है पूरी खोजे जमात की जो अब दस्तयाब नहीं है। 1 रुपया और 25 पैसा उसकी कीमत मेरे पास, मेरे लाइब्रेरी में तो आपको मिल जाएगी। मैंने अभी हमारे मुझसे कहा कि आपके जमात के पास जो हिस्ट्री नहीं होगी ना, वो मुनव्वर के घर पे दस्तक देना मैं आपको दूंगा। यहाँ खोजा जमात आपको आगे लेके चलता हूँ। छोटी जमात और बड़ी जमात की मानी ये कि हम छोटे थे, थोड़े थे, इसलिए हम नंडी बोलते। अपन छोटी जमात, वो लोग कसीर तादाद में थे इस्माइली लोग, वो बड़ी जमात है। केसरबाग बंबई का मशहूर, और वो केसरबाई बनाने वाली केसरबाई, उसमें सिर्फ एक बारीक सा तनाज़ा कि ये फर्श को मोज़ाइक जो हो रही थी, तो दाऊद सेठ ने कहा कि हम इस 2 दिन पहले मुहर्रम आ रहा है, तो अगर हम इसको इस मशीन को ले जाकर मस्जिद के फर्श के लिए, तो पुरानी मस्जिद थी, अगर हम इसको इस्तेमाल करें, इजाजत दे दी केसरबाई, ठीक है, पुराना केसरबाग था। कुछ ऐसे अशखास थे जो शर्शी नहीं बने थे, उन्होंने एतराज किया कि नहीं, ये मशीन नहीं जाएगी। दाऊद सेठ ने उसी वक्त कह दिया कि आज मेरा पूरा कबीला जो है ना, वो अहले बैत के रास्ते पर चलेगा और मेरा पूरा खानदान, और मिठाइयाँ बटी, मिठाइयाँ तकसीम हुई है कि दाऊद सेठ ने अपना मसलक तब्दील कर। बहरहाल ये बड़ी जमात, बंबई की इस्माइली जमात और मुखी कामरिया और वो हजरात जिन्होंने हमें मजहब हक्का की जानिब लाने में खिदमत दी है, उनमें हबीब कंसारा वाले कहलाते हैं। कसारा वाला कहते हैं, लेकिन कंसारा वो जो होते हैं ना, बर्तन होते थे उनके व्यापारी, ये कंसारे वाले। केसरबाई का वालिद का नाम साजन, केसरबाई साजन, जिन्होंने केसरबाग को डोनेट कर दिया हमारे लिए, और आज तो बड़ी कदीम केसरबाग बन चुका। और दीगर मुखैर हजरात में जाफर अली राइटर का नाम कभी नहीं भूल सकते। अलमदार एक अखबार निकलता था, उसमें उन्होंने दोनों मजाहिब के अकायद को पेश किया, इस्माइली और इशनाशी। बड़ा एहसान है जाफर अली राइटर का। और एक जाफर अली असीर, एक बाल भाई बराबर है, 24 या 25 साल की उम्र में गया। उसकी किताबें आप पढ़े, मेरे गुजराती जबान का हवाला दिया ना, खुदा की कसम कहता हूं, मैं हूं गुजराती, मैंने उर्दू सीखी है। एक किताब उसने लिखी सत्यनी वेदी पर, बराबर, सत्यनी वेदी पर, आप उसको पढ़े तो इस्लाम नी फलसफी, आप पढ़े उनकी किताब। 24 साल की उम्र में क्या कारनामा अंजाम दिया उसने, चला गया तूने बाहर। उसकी एक हिस्ट्री है जिसके लिए चाहिए मिलाया गया। और इनकी हिफाजत आज भी उलमा और दीगर शहादतें दे रहे हैं, लेकिन खोजा शिया इशनाशी की बुनियाद में बहुत सी जानों का नजराना दिया गया है। तब ये खोजा शिया इशनाशी जमात का वजूद आया। पीढ़ाई को छोड़ दो, उसकी हिस्ट्री भी मेरे पास है कि कब हम आए हैं यहां पर और कब ये बना, तब ये जमात खोजा जमात वजूद में आई है। खोजा होना हमारी इज्जत है, हमारी सादत है। हम ऐसे नहीं है कि अपने लोगों को भूल जाएं। और ये खोजा लफ्ज हिंदी है, जिनके मैंने बता चुका आपको कि ये हिंदी लफ्ज है। खोजा, ख्वाजा और खोज, ढूंढो, मैं बता चुका हूं इसलिए जहमत नहीं दूंगा। एडलजी धनजी काबा हमारी कौम का बहुत बड़ा नाम है, अल्लामा हाजी गुलाम अली के साथ, अमरेली के रहने वाले थे। हाजी अलादीन हाजी गुलाम हुसैन, जिसको ऐन गैन के नाम से कौम याद कर रही होगी, क्या खिदमत थी। रफीकुल मोमिनीन, जिसको लक़ब मिला। जाफर अली वकील, साइकिलों पे जाकर, ये वो नाम है कि जो तबर्रुक अपने घर से ले जाते थे, मुझ जैसा मौलवी नहीं था, वो मजलिसों में अपने घर से तबर्रुक ले जाते थे और तबर्रुक खुद तकसीम करते थे और फिर बैठा के मजहब हक्का का पैगाम देते थे। उसमें खोजों का नाम है जाफर अली वकील, भावनगर वाले। उन लोगों को हुकूमत हिंदुस्तान ने सर का टाइटल दिया, बेरोनेट का टाइटल दिया, खान बहादुर के अलकाब से कौम के, हमारे खोजे कौम को नवाजा गया है। 1905 खालिक दिना गर्ल्स स्कूल और खालिक दिना हॉल का काम शुरू हुआ, जिसमें खारादर का गुसल खाना और हुसैनी बाग नंबर 1 में 100 साल पहले का हॉल चागला और लालन फैमिली ने बनाया। हमारे मोहतरम अशरफ भाई यहां मौजूद है, इन्हें अब याद होगा कि हमने उस हॉल की, इस जमात ने नए असर नौ तामीर की। 100 साल की तख्ती बाहर लगी हुई है, वो तख्ती कौम ने, हमारी जमात ने वैसे ही रखी।
ہم اپنے بزرگوں کو جنہوں نے جو کام کیا ہے کبھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اثر نو تعمیر کیا ہے؟ وہ چاگلا خاندان کے غلام علی غلام حسین چاگلا کراچی میں میئر رہ چکے ہیں اور وہ میئر کی حیثیت سے آئے اور 1 صدی سے پہلے کی یہ تاریخ محفوظ رہی ہے کہ وہ ہمارے صدر رہے ہیں. نام یاد رکھے گا بالکل آپ کا. 1988 میں شہید بھوجانی کی جب آپ بات کرنے کے پینل کے ساتھ آئے تو اس وقت جماعت کے فنڈ میں تنخواہ بھی نہیں تھی اور شہید نے 70,000 روپیز قرض لیا تھا. کچھ اپنے جیب سے ڈالے شہید حمید بھوجانی نے. میں چاہتا تھا کہ میں اس کے جلسے میں آتا, میری مصروفیات رہی, میں نہیں پہنچ سکا ہوں. اگر یاد کرتی جماعت تو میں آ کر یہ بتاتا کہ کس طریقے سے یہ شہید حمید بھوجانی ہال ایسا نہیں, مت فراموش کرو ان جگہوں کو. یہ ان کے پروجیکٹ, ان میں سب سے بڑی کاوش شہید کی یہ ہے کہ دیگر میں کہ مخیر حضرات بھی تھے. خمس کی رقم آیت اللہ علامہ سید ابوالقاسم خوئی سے شہید کو 31 اگست 1989 میں دی گئی تھی. 1877 میں بمبئی میں جناب دیوجی جمال, یہ نام یاد رکھیے گا, دیوجی جمال جو زنجیبار میں آئے رہنے والے تھے, زنجیبار سے آئے تھے اور اپنے اشناشری مذہب کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس مذہب کا اعلان کیا کہ میں پنجتنی اعلان میں آ رہا ہوں. بمبئی, کچھ اور کاٹھیاواڑ, یہ 3 جگہ اپنی قوم بسی. میں اپنی جماعت کا آغاز جناب حسن علی جعفر مومباسا والے کے نام سے اس لیے کر رہا ہوں کہ افریقہ میں مجنگا پور بندر ہے جامنگر اور راجکوٹ کے بیچ میں, جہاں سے جہاز جاتا تھا, یعنی ایک لانچ جاتی تھی. وہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد مجنگا, جس کو آج ماجنگا کہتے ہیں مڈاگاسکر کا, وہاں ہماری قوم آباد ہے, آج بھی جماعتیں ہیں آباد, وہاں لے جائے گا. اور یہ چلے وہاں سے کاٹھیاواڑ کی بنا کے کھوجا جماعتوں کا آغاز ہوا. حسن علی جعفر مومباسا والے کے نام سے پوربندر سے کشتی میں پہنچے. کھوجا جماعتیں پاکستان میں انڈیا کے علاوہ کینیا, تنزانیہ, صومالیہ, زائر, روانڈا, برونڈی, یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان جگہوں پہ میں پہنچا ہوں, میں گیا ہوں ان جگہوں کے اوپر. موزمبیق, مراسی, ماریشس, ایتھوپیا, ایران, کویت, بحرین, مسقط, عرب امارات, سری لنکا, سنگاپور, ہانگ کانگ, یہ سب جگہ کے اوپر ہماری جماعتیں ہیں, ہماری قوم ہے. آپ یاد رکھیں, پورٹوگل, برٹن, کینیڈا اور امریکہ میں بھی شیعہ اشناشی, کھوجا شیعہ اشناشی بڑی چھوٹی جماعتیں موجود ہیں. افریقہ میں 1890 1890 میں دیوجی جمال اور ان کے خانوادے نے لامو کے کنارے پہ ایک مسجد تعمیر کی. یاد رہے گا یہ لفظ کے دہراؤں, 1890 میں دیوجی جمال اور ان کے خاندان نے لامو افریقہ میں اس کے کنارے پہ ایک مسجد تعمیر کی. اس وقت لامو میں 1905 تک 300 گھر ہمارے موجود تھے, یعنی 1500 اشخاص. یہ ننھی جماعت, یہ کثیر, یہ چھوٹی جماعت. 1857 میں ایک نام اور یاد رکھیں, داتو ہرجی, یہ بھی افریقہ سے جنگبار سے آئے. ان کے فرزند جناب جعفر اے داتو مومباسا میں جو کھوجا کچھ مانڈوی کے رہنے والے تھے آئے تھے. ان کو اسماعیلی اشناشری ایک رہ کر اپنے عقیدے پہ چلنے کی تاکید 1903 تک کی گئی. 2011 میں آپ بیٹھے ہیں, میں 1903 کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 75 گھر اشناشری بن گئے تھے. نیروبی, جہاں پہ ملا نانجی کی فیملی نے بڑی خدمات دی. ملا نانجی کا نام بھی صرف فہرست نیروبی کے اندر. ان کے آبا و اجداد اور ان کے خانوادوں نے بڑا حصہ لیا ہے کھوجا سے. افریقہ فیڈریشن میں, میرے محترم اشرف بھائی بیٹھے اس لیے جملہ میں دبا کے کہہ رہا ہوں, افریقہ فیڈریشن میں 44 جماعتیں, 1-2 جماعت نہیں, 44 جماعتوں کی یونٹی بنا کر اس کے چیئرمین اور صدر مرحوم حاجی ابراہیم شریف دیوجی نے خدماتیں دی. آج 44 لوگوں کو ہم ایک دماغ کا نہیں کر سکتے, اس نے 44 جماعتوں کو ایک دماغ کا کیا. آسمان سے اتر کر نازل ہوا تھا, کوئی فرشتہ تھا. میں نے علامہ حاجی کا نام لے لیا نا, مجھے یہ جملہ کہہ دیجیے. میں اس لیے نہیں کہتا ہوں, میری کوئی رشتے, مجھے چھوٹے حاجی ناجی کا لقب دیا اس لیے نہیں کہتا ہوں. 400 کتابیں گجراتی میں لکھی ہے اس نے, 400. مجھے آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے تو اس وقت دے دے. منور یہاں بیٹھا ہے آپ کے سامنے, کہ جس نے 400 کتابیں لکھی ہوگی اس نے پڑھی کتنی ہوگی یہ مجھے بتا دیں. 400 گجراتی لینگویج کی کتابیں, مجموعہ تو میں نے اس لیے نام لیا ہے کہ ہر ہمارے گھر میں موجود ہے دعاؤں کا. عورتیں کم از کم ان کی مرہون منت ہے تو ان کو فاتحہ سے روزانہ یاد کرو. اس نے دعائیں سکھائی ہے. کہاں جاتی عربی سیکھنے کے لیے ہماری عورتیں؟
ज़ियारतें, दुआएं, और ऐसी कितनी किताबों, 400 किताबें, लोगों को उनका नाम भी याद नहीं किताबों का। तो उम्र कितनी उनकी, 400 साल की, 80 बरस की उसकी। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक मौजू मुझे दे दिया गया कि ख्वाजा कौम की तारीख और उसके मौसिन, एक मौसिन के लिए मुझे 1 घंटा दरकार है, जो मैं जमात से मांगूंगा भी नहीं। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, मुझे मालूम है, मगर मेरे जैसे एक इंसान के लिए 1 घंटा चाहिए, तब मैं ये आपको तारीख बता सकूंगा। मैं यहां तक आपको लेकर आया कि ये 1905 तक, 1903 तक मैं आपको लेकर आया था। 1903 में तकरीबन 75 घर इस्नाशी के नैरोबी में बन चुके थे, जहां मुल्ला नानजी उनके आबा हो जाते। अफ्रीका फेडरेशन में 44 जमातों के सदर और चेयरमैन हाजी इब्राहिम शरीफ, जिनकी खिदमत फरामोश नहीं किया जा सकती कभी भी, और वो 44 इंसानों के ख्यालों को नहीं, जमातों को एक जाग करके बड़ी खिदमत दिए। उनके बाद उनके भाई बाना अली, उन्होंने भी खिदमत दी, उनके बेटे अरुषा में बड़ी खिदमत दी है। ये जाफर देवजी जमाल का जो खानवादा यहाँ पर खिदमत दे रहा है, ये एक इनके नाम का एक मुसाफिर खाना है, देवजी जमाल मुसाफिर खाना, बम्बई के अंदर, ये उन्होंने तामीर किया, आज भी मौजूद है। बड़ा खानवादी ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम के बड़ी खिदमत दी है, जहाँ बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और सुदूर भी आए खिदमत के लिए, मगर जैसा ख्वाजा शिया इस्नाशी मुस्लिम कम्युनिटी यानी वर्ल्ड फेडरेशन को मुल्ला असगर एम जाफर के जैसा सदर मिला, और जैसा हमें ख्वाजा कौम को मरहूम हाजी इब्राहिम भाई शरीफ देवजी जैसा इंसान वर्ल्ड फेडरेशन का मिला, अफ्रीका फेडरेशन का मिला, ये 2 शख्सियतें जैसे फिर हमको नहीं मिल सकती। महुआ में, हिंदुस्तान में 700 घरों में से 1930 पे अब मैं आया। 1930 में तकरीबन 30 घरों के अलावा बाकी ख्वाजा इस्नाशी, और फिर भी तनाजे के बावजूद भी 2-3 खून की तारीख है मेरे पास जो तवील है महुआ की, और उस महुआ के जगह का नाम रखा गया है खूनी खांचा, जहां पर खोजों का खून बहाया गया। तनाजा नहीं करना चाहता, महुए में है खूनी खांचा। वहां पर इन लोगों ने जो इमाम बारगाह बनाया और जिस तरीके से किया, उसमें भी देवजी गुलाम हुसैन एक और नाम है। एक इमारत, एक इमाम बारगाह मस्जिद तामीर की, आज तक वो मस्जिद को वापस वहीं पर रख के ये गुलाम हुसैन भाई देवजी, बड़ा नाम है। भावनगर के अंदर इन्होंने जो मकान बनाया ना, उससे वसीयतनामा लिखा था कि इस मकान की तामीर के लिए किसी से चंदा नहीं मांगना, ये मकान खुद आपको चंदा देगा, डोनेशन मकान ये देगा, भोजानी नोट बरसाएगा। आखिर की बात नहीं आ रही ना, बखुदा कसमिया कह रहा हूं, मेरी आंख को देखी बात कर रहा हूं कि जब ये नए तरीके से तामीर हुआ है, वहीं से रकम मिली। क्या काम किया उन्होंने, कल का सोचा है, आज का नहीं सोचा है कि मेरे आगे ये 15-20 आएंगे तो बस ये काफी है, 30-25 कुर्सी नहीं, जमात ने इसमें 100 कुर्सियां लगाई। मैंने पहले कहा एक आदमी मेरे सामने बैठे, मेरे लिए 1000 के बराबर है वो। खुदा आपको सलामत रखे, इलाही आमीन जोर से कहिएगा, खुदा मेरी जमात को सलामत रखे। नहीं, ऐसी छोटी से मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा भाई, खुदा मेरी जमात को सलामत रखे, जोर से बोले। ये बड़ा खून देकर हम यहां तक पहुंचे, 125-150 साल की तारीख है तो क्या हो गया। लेकिन हिंदू से इस्माइली में कैसे आए हैं, इस्माइली से इस्नाशी हम कैसे आए, कितने अशखास हमको यहां तक ले गया। आगे बढ़कर अब इस जो पुराना जो इन्होंने देवजी भाई गुलाम हुसैन ने बनाया, जो तामीर के पैसे वहां से मिले, उसका नाम आज तक जनाब का मकान, कोई इमाम जनाब का मकान, क्या मजलिस से जनाब ना मकान, आज भी चले जाए बहुत मशहूर नाम है, नाम मिले जनाब ना मकान में मजलिस, आज तक भी वो नाम देवजी जमाल देवजी गुलाम हुसैन भाई का किया हुआ था। आगे बढ़कर कासम भाई मूसा भाई बंबई आ गए, और ईसा भाई नानजी खोजे इस्माइली साथ में आने के बाद हिजरत करके बंबई जब आए वो अफ्रीका से, और ये 3 जगह मैंने बताई, कच्छ बताया, काठियावाड़ मैंने आपको बताया, ये दोनों जगह से बहुत ज्यादा निकले। उसमें से जो तकसीम हुए अफ्रीका के अंदर गए, कच्छ मुंद्रा में आए, कच्छ मांडवी के अंदर आए, काठियावाड़ तो पूरा भरा पड़ा। पूरा हिंदुस्तान के अंदर अगर आप बंबई से आगे चले जाएं, गुजरात की साइड में एक गांव के अंदर अल्लामा हाजी गुलाम अली की किताबें मिलेंगी, मौलवी मिलेगा, मदरसा मिलेगा, और एक लड़के से कोई सवाल कर लो फिका का, वो आपको जवाब दे। और एक जगह पे ये आपका गुनहगार, अल्लाह का गुनहगार, आपका छोटा सा जमात का छोटा सा, मैं सिर्फ जमात का मेंबर हूं, लेकिन मुझे नाज, मुझे इन अशखासों पर नाज, मुझे आप पर फौसा, आप मेरी कौम के, आपके कांधों पर मुनव्वर जाए तो इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या होगी मुनव्वर की, मुझे बताएं। मैंने एक जिंदगी वक्फ कर दी इस कौम के लिए, मेरे मजहब के लिए, मेरे हक के लिए, मेरा मजहब हक पर है।
بعد میں مراجے پہ, بعد میں علماء سے جائے, پہلے ایک طالب علم سے پاس تو بیٹھ کر بات کرے نا کہ میں کس مذہب کی, کس عقیدے کی بات کر رہا ہوں, کس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں, کون ہے کھوجا, کھوگ نہیں گئی ہے, کھوج ہے, ڈھونڈو, فاؤنڈ اٹ, کہاں ہے یہ قوم, کہاں چلی گئی. اور اس زمانے میں جب یہ آئے ہیں ہجرت کرنے کے بعد, تو ان لوگوں میں حبیب اسماعیل کنسارا والے داؤد بھائی کے بعد سے آئے ہوئے, حاجی جیٹھا بھائی گوکل, اب یہ نام ان کا چلا وہاڑ وٹیا, گوکل بعد میں بنے, ان کے وہاڑ چلتے تھے گوکل فیملی کے, جو آج اسی فیملی کے ہمارے پریسیڈنٹ جو ہے انہی فیملی سے تعلق ہے. بہت کام کیا ماشاءاللہ ان کے فیملی نے, کیا کام نہیں کیا بسرا میں کئی ان کے آبا و اجداد کے ساتھ رہ چکا ہوں. یہ جیٹھا بھائی گوکل جو وہاڑ وٹیا والے کہلاتے تھے, انہی کے ساتھ حاجی داؤد بھائی ناصر مل گئے, بمبئی کے اندر آئے. عبد الحسین تھاریانی, اکبر علی علی بھائی, رضا حسین دیورا جی, اب یہ سب لوگ بمبئی سے واپس ہجرت کر کے 47 کے آس پاس کراچی میں آ گئے, یعنی پاکستان کے آس پاس. اور جب یہ کراچی پہنچے ہیں تو بہت سونے خدمات اسی وقت جماعت کے صدر, پہلے جو بتایا وہ غلام حسین غلام علی, اس کے بعد جو صدر آئے ہیں وہ رحیم علی چاگلا آئے, جن کے ساتھ میں نے کام کیا. بہت قابل آدمی, اور اس سے بڑھ کر کیا میں اس ملک کے اندر جو ریکارڈ ہو رہی میں تاریخ بتاؤں. میں نے اسلام آباد کی تقریر میں کہا, مجھے ہر عقیدے کا احترام, ہر مسلک کو سلام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. کوئی انسان ایوہ الناس, قرآن کہہ رہا ہے ایوہ الناس ایوہ المسلمون, میں نے بات نہیں, میں نے ایوہ الناس کہہ کے بات کی. اے انسانوں, تم انسان پیدا کیا اللہ نے تم کو, شکر ادا کرو کہ خدا نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا, اور اس سے زیادہ شکر ادا کرو کہ اس گھر میں پیدا کیا جو گھر محمد و آل محمد کی محبت والا گھر ہے. درود تو پڑھو ذرا اس نام کے اوپر دوستو. میں نے پانی بھی نہیں پیا اور پیوں گا بھی نہیں, فکر نہ کرے آپ. میں نے اس جماعت کے پاس جب قبر کی جگہ مانگی دی مجھے, اور میں نے وصیت نامے میں نے کہا میرے پاس رہتا ہے وصیت نامہ اور کفن میرے ساتھ, میں نے لکھا ہے للہ میری قبر پہ پانی نہ چھڑکنا. اگر کوئی گاندھا دینے آئے تو یاد رکھیے گا, للہ میری قبر پہ پانی نہ چھڑکنا, پیاسوں کے پاس جاتا ہوں پیاسا ہی جاؤں گا. میں نے کبھی مجلس میں اس کی موت, خدا تیرا محتاج ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پانی, کوئی خراب چیز تو نہیں ہے نا بھائی, گلا ہے سوکھ جائے گا پانی پی لو, اس میں کیا ہو. لیکن میں نے, خدا نے مجھے بچایا ان چیزوں کے نہیں دی, اس نے آواز دی, پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب اس صورت میں جب یہ لوگ کراچی کے اندر پہنچ گئے نا, تو اس وقت یہ خدمات قاسم علی بھانجی ہوا کرتے تھے مرحوم, جماعت کے ساتھ رحیم علی چاگلا کو جو میں نے اسلام سے ذکر کیا وہ یہ کیا کہ محمد علی جناح کون تھے. دیکھو ریکارڈ ہو رہی تقریر, جب چاہے میرا گریبان پہلے پکڑنا, پھر جا کر اس PCP میرے دوست میرا بچہ علی یہاں پر موجود ہے آپ کے ساتھ. اس رحیم علی چاگرا پریسیڈنٹ آف دا کھوجا پیڑائی شیعہ, کیونکہ پیڑ کی اس لیے میرے پاس کھوجا پیڑائی شیعہ اسناد سننے کے جماعت کے صدر محترم ان کا رابطہ کیا گیا. جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا, ان کی زیر نگرانی حاجی کلو نے غسل و کفن دیا قائد اعظم کو, اور جنازے کے آگے آگے 2 کھوجا بزرگ علم اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں. پوچھو, ہم سے پوچھو نا. ان کی بیوی کی قبر رتن بھائی آج بمبئی کے قبرستان میں موجود ہے. کس مسلک کا تھا ہمیں کچھ بھی, ہم تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں. علامہ اقبال کے ہم نے کب دعویٰ کیا ہے, ہم تو ایک شعر سے سمجھاتے ہیں. اقبال نے خود کہا ہے, پوچھتے علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ اقبال, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گنہگار بو ترابی ہے. اللہ, پڑھو نا اب درود پڑھو, واہ واہ تو بڑا درود تو پڑھو. کیوں ہم سے پوچھتے ہو, اقبال سے پوچھو, ہم نے تو کوئی اس کی بات بھی نہیں کی ہے. یہ رحیم علی چاگلا کے دوسرے صدر کے زمانے میں تھا. اور اس کے بعد صدور میں بہت آئے. رحیم چاگلا کے بعد عبد الحسین نظر علی آئے, نظر مراد آئے, جعفر بھائی جن کے ساتھ میں نے کام کیا, جعفر علی ساگروال آئے, حیدر ملجی آئے, محمد حسین دھنجی آئے, علی اکبر پی عمران آئے, مولانا عباس قملی کا نام پھر میں اس لیے لے رہا ہوں دبا کے کہ انہوں نے میرے پاس ابھی چند مہینے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے ممبر ہونے کی کھوجا جماعت کی کوئی سند مانگی تھی. میں نے بامبے جماعت میں الحمدللہ دنیا کے اندر پورا, منور کو کچھ نہیں چاہیے, بس آپ لوگ میرے ساتھ. میں جس جماعت میں گیا ہوں, میں نے جملہ گجراتی میں کہا تھا, جب میں 2:30 بجے تڑاجا پہنچا ہوں نا, 2:30 بجے رات کے, تو میں سویا ہوا تھا یہ اتار کے, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ قوم ہار لے کے کھڑی ہوئی ہے. تو میں نے گجراتی زبان میں کہا کہ پوری قوم مڑی نہیں, پر میں نے ہار نہیں آتی سکے, تو میں شاہ مٹے ہار لینے ہوگا. زو مانی تھا وہ لفظ تھا, اب بھی کہتا ہوں, ہار نہیں دے سکو گا تم کئی کے لیے 2:30 بجے رات کو میرے لیے ہار نہیں. منور کو چاہیے نہیں یہ کوئی چیز, دعا کرو میری اس زندگی کے لیے جو حیات ہے, حیات
यहाँ तो मैं किसी अशरफ भाई के पास चले जाऊंगा, इकबाल जी मेरे जितने बेटे आपके पास आ जाऊंगा, मुझे खाना खाने, क्या रोटी नहीं देंगे आप मुझे? रिस्क राजिक वो है, वो रिस्क मांगो, वो रिस्क कि जिसके लिए कहा है कि शहीदों का रिस्क, पाको ताहिर रिस्क है। क्या रिस्क होगा? जिंदगी की दलील है रिस्क। थोड़ी गेल में गुफ्तगू हो जाएंगी। बहरहाल अब इन लोगों ने, इन सदर ने जो नाम लिया, अब्बास कोमिल के पास मैंने फोटोकॉपी मंगाकर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो द मेंबर ऑफ खोजा शिया इस्लामी जमात मुंबई, वो कंसल्टिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने जो फीस अदा की है ना 3 रुपए, वो भी लिखे हुए हैं। ही वॉज द मेंबर ऑफ, ही वॉज खोजा शिया। फख्र करता हूँ, हमें इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल ये रिकॉर्ड में है, मैंने फॉर्म मंगाया है। अब्बास कोमिल साहब ने बोला, मैंने क्या हुआ, ये मेरे साथ बहुत बचपना गुजरा है इनका भी, तो क्योंकि मैं अब सोचता हूं कि इनके पिदर बुजुर्गवार, उनके पिदर बुजुर्गवार, तीसरी पुश्त मेरे पास आकर बैठी, मैं कैसे इनको बताऊं कि आपके वालिद, आपके दादा के साथ मैंने बचपन में क्या काम किया। जब मैंने कहा ना कि 5 रुपए में मैंने जिस इदारे को शुरू किया है, आज वो करोड़ों रुपए की मिल्कियत बन चुकी है। आज कहां, मैं तो अपने खोजा कौम का हिस्ट्री लेकर बैठा हूं, तशय्युकी तो नहीं लेकर बैठा हूं। अब इसमें दीगर खादिमों में शहीद हमीद भोजानी का नाम हुई, उन्होंने तो नक्शा ही बदल दिया, इतना नक्शा बदल दिया कि शायद इन खिदमत गुजारों में ये कौम पे जो ये एक जुमला उनका दोहरा दूं, मैं आया नहीं था, मुझे शायद मसरूफियात थी मेरी जुमे के शहीदों के, मैंने जुमला कहा था उनकी, मैं उनके साथ बहुत हवाई जहाज में सफर करता रहा, जमातों के लिए बड़ी डिस्कस होती रही। उनका एक जुमला था कि मुनव्वर भाई તમે दुआ करो, अगर खुदाए મને મોહલત આપીને આખો બ્રિટો રોડ ખોજા શિયા ઇસ્લામી જમાતનું ન બનાવી દો તો મારું નામ બદલી કરી દે। એના વિચારો તો તમે જુઓ શું હતા। और फिर ये दोहराया गया है, बहुत सी तकरीरों में लोगों ने दोहराया है कि वो कहते थे कि मुझे बहुत सारा काम करना है और वक्त नहीं है मेरे पास, कि साले की इंतकाल पे मुझे, मैं फिर मैं पहुंचू, मैंने कहा बोले नहीं, सवेरे मस्जिद में आ जाइए खोजा बस। बहुत दफा ये जुमला इनकी जबान पर आता था, जो मैंने इनकी शादी शहीद की मजलिस पढ़ी हुसैनीबाद में, जमात की तरफ से मैंने दोहराया, बहुत मरतबा कहते थे। यानी इल्म था कि मुझे बहुत सारा काम करना है लेकिन वक्त नहीं है, जिंदगी नहीं है। मौत का इल्म किसको होता है? जो ईमान की उस मंजिल पर होता है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो जाएगा, मुझे माफ कर। ईमान की उस मंजिल पर होता है जिसे पता लग जाता है कि मुझे कब मौत आना। खोजा कौम की कदर क्या करो दोस्तों, अपनी जमात को पहचानो, फक्र करो। जिन बुजुर्गों ने खून दिया हुआ, पसीना नहीं खून दिया, एक पसीने का कतरा भी तुमसे तवक्को नहीं की है, हमारे दरमियान नहीं तो क्या बात, कौम नहीं भूली, इसके नाम से भोजन हॉल में हम बैठे हुए हैं। मैं इनके साथ में जब रहता था तो जंजीबार और अफ्रीका के एक कासम भाई नाथा भाई, उन्होंने अपनी खोजा कौम की तारीख के चंद नाम मुझे हवाले किए। क्या आपको पता है खोजा कौम की तारीख के अंदर मेरे दादा ने जो नाम दिए, 1863 में इस कासम भाई नाथा का इंतकाल हुआ, उसको हिंदुस्तान ने जेपी का लकब दिया था। हमारे खोजा कौम में बहुत से को जेपी का लकब मिला हुआ। एक धर्मसी पूंजा जो कच्छ के रहने वाले थे, उनके खानवादे से, मैं क्या क्या नाम आपके सामने ले रहा हूं, उनके खानवादे से थोड़ा सा दिमाग के ऊपर असर आने वाला एक बंदा जिसको अली भाई पूंजा याद करते थे। याद करो दोस्तों, इसी कराची की बात कर रहा हूं। अली भाई पूंजा छोटे कद के होते थे थोड़ा सा, ये उसी खानवादे के हैं कि जिनको जेपी का लकब दिया गया था। धर्मसी पूंजा कच्छ के रहने वाले, कासम भाई धर्मसी, जेराज फाजल, पीर मोहम्मद कासम, खान भाई हबीब भाई, फाजल भाई गुलाम हुसैन, खान बहादुर का लकब हिंदुस्तान ने दिया है खोजे को, हाशम भाई वसराम, ये नागलपुर के रहने वाले थे, जेराज पीर भाई, इनका खानवादा भी यहां पर मौजूद है, करीम भाई इब्राहिम जेपी, रहमू भाई अलाना, फाजल भाई वसराम, अब्दुल्ला मेराली धर्मसी, हाजी भाई लालजी, नैन्सी खैराज, पीर मोहम्मद इब्राहिम, इनके खानवादे की नस्ल चली आ रही है, नूर मोहम्मद गोकल, वाणवटिये वाले, पहचान जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अब इन्हीं हाजी कल जिनको गुस्ल दिया कायदे आजम को, ये बात लंबी हो जाएंगी। अब इन जमातों में रहने के बाद जिस वक्त 125 और 130 140 साल के अरसे में हम यहां से हटे हैं, तो काठियावाड़ कच्छ में काफी लोग गए, अफ्रीका में गए, बंबई के अंदर लोग आए और वहां से इन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान को सुकूनत दी। अब यहां आने के बाद कोई महफिल नहीं, मां बारगाह नहीं, पीढ़ाई जमात थी,
वो उनकी सिंधी लोगों की थी। बड़ा ताबून है हमारा, बड़ा कॉपरेटिव है हमारा। नाम है खोजा पीड़ है शायद वाले पीड़ है, आपने देखा होगा। सकाफत है उनकी, जहाँ ढोल बजाए जाते चांद रात के पहले से, और वो लकड़े के घोड़े, सकाफत है। हमें कोई बिल्कुल अच्छी चीज़ है। हुसैन के नाम के ऊपर तो जो चीज़ होती किसी से कुछ बोला अच्छी हमारी बुराई जमाते हमारी। एक महफिल जाफरी की बुनियाद 1947 में रखी गई। ये महफिल जाफरी आप देख रहे वो नहीं, हाँ ये नाम दे रहा हूं महफिल जाफरी। इन अशखासों में जिनमें असगर अली वकील, जाफर वकील के खानवादे से थे। जाफर वकील तो मौलाना थे, ये राइटर थे। जैसे जाफर अली राइटर थे ऐसे ये राइटर थे, उनका राइटर लकब था, ये खुद असगर वकील राइटर थे। निशात नूरानी का नाम इस जमात ने बहुत लिया है। हसन अली नूरानी उनका नाम महफिल जाफरी। हुसैन अली एम रजा, ये सब मरहूमिन के मोहसिनों के फहरिस्त बता रहा हूं। और मोहम्मद अली नजर अली के नाम। एक छोटा सा कमरा, इस वक्त के ताबूत कमेटी से आगे बढ़ेंगे तो कुछ अंडे वालों की दुकान है। अब एक बड़ी इमारत वहां खड़ी हो गई है। वहां पर एक कमरा छोटा सा मरहूम रजब अली अली भाई पेठा ने एक कमरा वहां महफिल के लिए दिया। उसमें महफिल जाफरी की बुनियाद डाली गई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुनव्वर सलील आपसे गुफ्तगू कर रहा है, बहुत याद रखिएगा इन चीजों को। मैं चला जाऊंगा ये चीजें रह जाएंगी। मैं आज उस नाम को आपके सामने ले रहा हूं, मौलाना मोहम्मद रजा दाऊदानी। मैं बहुत माजरत उनसे इसलिए हूं कि ये अली गवा दे। इतनी बेचारों ने मुझसे मिन्नतें की है कि 1-2-4 घंटे दे दो, हमें सिर्फ एक तारीख चाहिए अल्लामा की, हमारे मौलमों की जो हमारे दिल में। मैं नहीं दे पाया। मैं उनसे बहुत, मैं दूसरा के शायद वो आज यहाँ पर होंगे तो मैं उनसे माजरत करके उनका शुक्रिया भी अदा करूँ। कर लगे आप हम घर पर आते, आप ये स्टूडियो पर आ जाए, आप जहाँ पहुँच जाए। यही वो फिर बेचारे शबीर मैसर, उनका भी मैं बहुत माजरत। उनको मैंने कहा था इसी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कहा है कि मैं मौलाना माजरत इसलिए हूँ कि मैंने आपके दादा के साथ काम किया है ना, अकबर भाई के साथ। मैंने आपके पिदर बुजुर्गवाल डॉक्टर गुलाम हुसैन के साथ काम किया है। तो अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अब वक्त नहीं रहा है। मैं 73 के करीब आ गया हूं, मालूम नहीं कब ये आंखें बंद हो जाएगी। और इसीलिए मैं शेर में कहता हूं, मता ये हुब्बे अहले बैत मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इस कुर्सी से नहीं उठ सकूंगा, ये जो पढ़ रहा हूं वो भी मुकम्मल कर सकूंगा नहीं कर, लेकिन इतना यकीन है मेरा गुसल खाना यहाँ पर। मेरे जनाजे दे के कांधे देने वाले मेरी कौम बैठी हुई, मुझे कब्र में सुला के आ जाना, फिर मैं जानूं मेरा मौला जाने। आपसे कभी कोई मेरी कुछ कोई चीज की गुजारिश नहीं है, लेकिन जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब पहुंच चुका हूं तो इन चीजों को याद रखा करो। ये ताबूत कमेटी के करीब एक छोटा सा कमरा दिया गया, और उसके बाद यूसुफ अली अलादीन पूनावाला, ये नाम आप लोगों को याद होगा। गौशाला एक बिल्डिंग का नाम है, और ये हमारी मस्जिद के सामने जो गली निकलती है, उसके सामने जब गली जाती है ना, तो उस गली के अंदर एक बिल्डिंग है गौशाला, वो अभी इंडियन नाम है। उसमें ये रहते हैं हुसैन अली अलादीन पूनावाला, जिनके भाई वजीर अली पूनावाला, वजीर मेंशन, जिन्होंने कायदे आजम जहां पैदा हुए ना, वो वजीर मेंशन को हुकूमत के हवाले किया। लाइब्रेरी कैसी बनी, क्या बनी, खारदर में पैदा हुई है मोहम्मद अली जनाब, वो वजीर मेंशन की पैदाइश का कुछ है। वो इनके भाई यूसुफ भाई के भाई थे वजीर अली पूनावाला, जो ये वहां रहते थे। हुकूमत ने वो चीज उनसे ले ली और उनको जगह भी उनको दी थी। अभी जो महफिल है उसमें एक कमरा बहुत छोटा सा था, दूसरा कमरा लिया गया और कमरे लिए गए। आगे चलकर खिदमत गुजारों में हाजी फाजल भाई हसन अली, सैयद कासम अली याकूब अली मियाँ बापू, मरहूम गुलाम हुसैन बाटली वाला, हाजी फिदा हुसैन भाई भोजानी, अली मोहम्मद भाई रोशन अली, आसिफ मिर्जा, हुसैन अली शेर अली भोजानी, मोहम्मद हुसैन रहीम कानजी, जनाब मोहम्मद अली देहरादून वाला, जनाब रजी, सब अभी के नाम दे रहा हूं, जनाब रजब अली आगरा वाला शरीक थे। आज की महफिल जाफरी जो देख रहे हैं वो मरहूम शहीद हमीद भोजानी के मरहूम ने मिन्नत। बहुत बड़ा तनाज़ा था उसमें। दोस्त मोहम्मद मरहूम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, दोस्त मोहम्मद भोजानी का बड़ा हिस्सा इस महफिल जाफरी के भी बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। बहुत अलील रहने के बाद भी जमात पे बहुत खराब बड़ी खिदमत दी उन्होंने, और वो नहीं देते तो और कौन आके खड़ा है। इस महफिल जाफरी के आगाज में अब या अली मुश्किल कुशा, बहुत माफी भैया, वल्ला मैंने घड़ी देखी नहीं, आप शायद घड़ी देख रहे होगे, मुझे माफ कर दें। मैं उन महफिलों के नाम को
मैं उन महफिलों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ताकि उन इदारों की तामीर और नौ आपके पास रहे। आपको जमात की पहली ऑफिस छोटी गली में, मैंने अभी शाकिर भाई से कहा है कि बचपने में वो छोटी गली में जो आज नीचे डिस्पेंसरी है ना, वहां सीढ़ी के हिलने वाले, मेरी कौम को ये भी मालूम नहीं था कि जब मैं वहां पहुंचता था तो हाजी कल्लू का बेटा वहां पर खिदमत देता था, ये कफन दफन के पैसे लेकर, उजरत लेकर। तो मेरी कौम के लोग पूछते थे कि मुनव्वर ये बता, ये जमात की ऑफिस है? मैंने कहा तो अपना कब्रिस्तान भी इधर ही है, खारा धर्म, छोटी गली में। बड़े लोग थे, बड़े लोग। मैंने कहा सेठ कब्रिस्तान यहां पर, मैं तो सिर्फ ये जनाजा लेने के लिए आया हूं। रास्ते में मिल गए बेचारे, तो गहवारा मुझे चाहिए, वो कह रहे 30 रुपए लगेंगे। मैंने कहा लो भाई 30 रुपये, जी जनाजा दे दो, मैं आगे से उठाऊंगा, वो पीछे से उठाएंगे, जहां मैयत होगी वहां चले जाए। उसने नीचे उतर के कहा अच्छा वो मौलाना है जो कस्बा कॉलोनी में आप मस्जिद पढ़ते हैं हमारे यहाँ? हाँ ठीक, आप पैसे? नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं है, आपने तो लिखा है बाहर गुजराती के अंदर कि रजा सिवाय अंदर आबू नहीं। मैं कहता हूं कि जमात से कहूंगा लिख दो कि कजा सिवाय अंदर आबू नहीं। ये देखें, ये एक तारीख है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये उस वक्त में आपसे बात कर रहा हूं, कहां से कहां हम जमात को लेकर आए। जिन जिन लोगों ने सदारत के ओहदे पर, सेक्रेटरी के ओहदे पर रहकर काम किया है, मुझे बहुत माजरत के साथ कहने दे, हमारे मोहतरम अशरफ भाई बैठे इसलिए जुमला मैं कह रहा हूं, जमात के पास वो रिकॉर्ड क्यों नहीं है कि इस जमात ने 1400 साल इमाम हुसैन का जश्न मनाया। बलूचिस्तान के गवर्नर मोहम्मद मूसा खान को मैं ले आया था इसी जमात के प्लेटफॉर्म पे, जब 3 रोज 1400 साल जश्न इमाम हुसैन मनाया गया, उसकी वीडियो उतरी है। शायद हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, मगर मेरे पास जमात के चाहने वालों ने, ओहदेदारों ने नहीं, चाहने वालों ने वीडियो मांगी थी। उस वक्त ये कमेटी नहीं थी, मैंने उन कमेटी का रिफर किया था कि आप जाएं, उनके पास नहीं मिले। अगर फूल की दुकान पे फूल नहीं मिलेगा तो क्या सोनारे के पास फूल मिलेगा? जहां कुरान छपता है वहीं कुरान नहीं है? क्या दिए के नीचे अंधेरा है? क्या हो गया है तुम? जमात ने जलसा किया, जाओ लोगों के पास पूछो कि उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, क्यों नहीं रिकॉर्ड है उनके पास? बहरहाल अब इसके बाद वो जो महफिलों को मैं नाम लेकर गुजर जाऊं, ये सब की आगाज ताबूत कमेटी क्या है? हुसैनी ताबूत, अब इमाम बारगाह हो गया। सिर्फ एक ताबूत शाबान अली नाम का बहुत ऊंचे कद का आदमी, बहुत गरीब था, उसने लकड़ियां जमा करके इस इमाम बारगाह के बाहर, ताबूत कमेटी नहीं थी, हॉल नहीं था, बाहर वो ताबूत बना। वो ताबूत बनाने वाले शाबान में गुजरा। उसके बाद कुछ जवान उस जमाने में आए और एक कमरा मिला ताबूत कमेटी। आज वो लोग के जिन्होंने ताबूत कमेटी बनाई हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन कैसे कैसे लोग आपको मालूम है, वो लकड़ियों के बीच में सुतली बांधते थे, आंखों से आंसू जारी होते थे। मैंने मुल्ला कादर हुसैन करबलाई का नाम ऐसे नहीं लिया है, मेरे पास बहुत से नाम, मैंने एक मकसद से नाम लिया है। इनके दादा इब्ने हसन के साथी मौलाना करबलाई के वालिद, इब्ने हसन करबलाई के वालिद, कादर हुसैन के वालिद नहीं, मौलाना इब्ने हसन करबलाई के जो हमारी खोजा जमात के पेशनमाज रह चुके हुए हैं, और मस्जिद खैरुल अमल का संग बुनियाद उनके हाथों से रखा गया, बाहर तख्ती लगी हुई है आज भी उनके नाम की। उनके वालिद सैयद हसन करबला के रहने वाले, ये 6-7 भाई थे करबलाई के, और ये मुल्ला कादर हुसैन करबलाई के दादा, ये दोनों शख्सियत की तारीख इराक की तारीख के अंदर अब्दुल करीम के वक्त लिखी गई है कि इन दोनों ने खोजा शिया इस्ना अशरी कौम की खिदमत की। खोजे नहीं थे मुल्ला करबलाई, इब्ने हसन सैयद थे, सैयद इब्ने हसन करबलाई। इन सैयदों का भी एहसान है हमारे सर पे दोस्तों, हमारी तारीख के अंदर, इसलिए मैं याद कर रहा हूं। और फिर खास वजन इसलिए याद कर रहा हूं कि ये दोनों अशखास वो थे कि उस जमाने में कैहान नाम का अखबार ईरान से निकलता था, जिसके तैयारे ने बहुत मुश्किल से लैंडिंग किया था, और उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है कि आवाज आई थी कि तेरे तैयारे में मेरे 5 जवार बैठे हुए हैं, तेरे तैयारे को कुछ नहीं होगा। राइटिंग के अंदर कैहान अखबार ने छापा है। सोचो इस मजहब को जानो दोस्तों। वो खोजा कौम के खादिम ऐसे थे कि ये दोनों अपने जमाने के अंदर रोजा ये सैयद शौदा हजरत इमाम हुसैन के पास आते थे, दरवाजा बंद होता था, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह कहते थे और दरवाजा खुल जाता था। इन्होंने मेरी जमात की खिदमत किस पाए के ऊपर होगी दोस्तों। इल्म बड़ी दौलत है जो जमात हमको दे रही है। लो कहीं से भी मिले ले लो दोस्तों, मत छोड़ो। हम उसके मानने वाले हैं जिसके लिए हुजूर ने कहा ना मदीनतुल इल्म वलीउन बाबुहा,
अली कितने बड़े शुजा थे, मैंने महफिल खुरासान में और दुनिया में बड़े नारे लगवाए, कसीदा तो मेरा वो है, लिखना पढ़ना छोड़, लेकिन मैं चाहता हूं अली कितना बड़ा शुजा था, वो मत ये नारे लगाओगे तुम खैबर का, अली कितना बड़ा आलिम था ये तो पहचानो, कि जिस पर नाजिल हुआ वो मोहम्मद मुस्तफा, और जिसके सीने में मुकम्मल कुरान वो अली मुर्तजा। पूरे मुकम्मल इल्म जो दावे से कहता है, यहां से पूछो, वहां का पूछो, इधर का पूछो, जो चाहे मुझसे सलोनी सलोनी, बहुत इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी। बहरहाल ये ताबूत कमेटी का था। महफिल मुर्तजा की मजलिस से मैंने कब पढ़ी आपको मालूम है? जब 600 रुपए के किराए के ऊपर एक बंगला पीसी जिसमें लिया गया, कुछ नहीं थी महफिल, 600 रुपीज मुझे लेने के लिए मरहूम शहीद बशीर अली भाई मोटर वाले वो लेने मुझे आया करते थे। वो भी शहीद हामिद शहीद भोजानी के साथ ही शहीद हुए, सही है, वो भी बशीर अली भाई, 600 रुपए का। उसके बाद ये महफिल मुर्तजा आगे बढ़ी है। अब जितनी महफिलें यहां पर है, मैं सिर्फ 1-3 मिनट में 2 बात कहना चाहूंगा कि हमारी तारीख है ना, खोजा शिया इस्ना अशरी जमात जब पीढ़ाई को छोड़, जब हम हिंदू से इस्माइली पर आए, इस्माइली से हम इस्ना अशरी पर आए, और इस्ना अशरी मजहब पे लाने वालों ने जिन उन्होंने खिदमात दी है, ये 125, 130, 140 साल का ये अरसा है। अब इस अरसे में जिन लोगों ने खिदमात दी है, कन्वर्ट हुए हमारी तरफ, जो नाम की फहरिस्त मैंने भी, शायद मैं कुछ नाम भूल गया हूं, मुझे माफ कर दे, वो लोग भी माफ कर दे, लेकिन ये 130, 140 साल, ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे ना, 150 साल से ज्यादा की हमारी तारीख है। मेरे मुताले के मुतालिक 125, 130, 135, 140 तक मैं लंदन की वर्ल्ड फेडरेशन में पहुंच चुका था कि ठीक है, इससे ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं हमारी। हम जहां से चले, आज आपको रतन बाई मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी, आज आपको सकून बाई मिलेंगी, है ना, ये सारे वो नाम हम थे, हम वहां से यहां आए, यहां पर आए, तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन एक बात हमेशा ख्याल करें कि अगर, जुमला बहुत काम का है, आप लोग बहुत इसे याद रखना, कि अगर हम अपने माजी को भूल जाएंगे, ले जाना जहन की कैसेट में, याद रखो मुनव्वर सलील दे रहा, अगर हम अपने माजी को भूल जाएंगे ना, आज कोई बना सकता, हम कल को छोड़कर अपनी आज को भी नहीं संवार सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को भी नहीं बना सकते। माजी से कट के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। माजी हमारा एक ट्यूटर है, वो तो ट्यूटर, वो एक हमारा मास्टर है जो हमको सिखा रहा है कि हमारा कल क्या था। बर्नार्ड शो का जुमला ये है कि जिसकी कल और आज दोनों एक सी गुजर जाए, वो सोच ले कि ही इज लॉस्ट समथिंग, उसने कुछ नुकसान किया है, उसने कुछ लॉस किया है। आपकी कल जो गुजरी है वो आज बेहतर आनी चाहिए। शरीयत का जुमला दूं, इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे चाहने वालों से कह दो कि जो नमाज तुमने पढ़ी है, उसके बाद जो तुम नमाज पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ी हुई नमाज से अब जो नमाज पढ़ रहे हो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। इसलिए मेरा मासूम इमाम कह रहा है, इसलिए कि शायद ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। क्या चाहते हैं हम? सांस, 2 सांसों पे टिकी हुई जिंदगी, एक ऊपर और एक नीचे, नीचे से ऊपर ना आए तो हम खलास, ऊपर से नीचे ना आए तो हम खलास। उसमें इतनी मुश्किलात। सुकून की जिंदगी जियो, मैंने पैगाम दिया है कई मजलिसों में जो अली ने रिकॉर्डिंग में चढ़ाया है, वो है फ्रांस की मजलिसें, गुजराती की मजलिसें। इत्मीनान की जिंदगी मेरी कौम को देना चाहता है बड़ा। काई की परेशानी है आपको, ये टू बी और नॉट टू बी, ये शुकूक की जिंदगी, ये रूह की बीमारी है, ये जिस्म की बीमारी है, रूह की बीमारी है। मैं करूं ना करूं, आपकी कुव्वत फैसला छीन लेता है ये शुकूक। मत जाओ इस दुनिया के अंदर, अबू जहल के इलाके को छोड़कर अबू तालिब के इलाके में आकर बात करो। इस इलाके में रहकर सोचो, तुम्हारी कौम बहुत अच्छी कौम है, हमारी जमात बहुत है, क्या काम की है हमारी जमात ने? कोई चीज को छोड़ी जमात, किन किन इलाकों में जाकर इस जमात ने काम किया, जरा सोचे कि ये भी ये जिनका मैंने शहादतों का जिक्र किया, सैयद लालन और लालजी भाई, जिनके तसावीर 4 शहीदों का खून इसके अंदर बहाया गया है, जिसमें हिरजी अला रखा के जो कातिल थे वो हमारे खोजे थे, लेकिन इस्नाशी मुझे लफ्ज से परहेज करने दें, खोजे थे, ख्वाजा से निकल के खोजे बनकर आए।
अच्छा, और उसके बाद जरा दुरूद तो पढ़ दी जरा। इसके अलावा जिन लोगों को कत्ल किया गया, जैसे मैंने अच्छा, और जिन लोगों को कत्ल किया गया, जैसे मैंने मवा का जिक्र किया, वो नाम ही बन गया है खून खांचा। उनको किस वजह से शहीद किया है, वजह तो जाननी है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि एक्सपेरिमेंट के डॉक्टर के पास मत जाए। हाँ, जिसने कभी सोल्जर बाजार ना देखा वो आपको जमात के ऑफिस नहीं दिखा सकता, और जिसने कराची नहीं देखा उससे तो पूछना भी नहीं। वो बोलेगा भाई किस सोल्जर की बात कर रहे हो यार, हमारे यहां सोल्जर होते, तुम्हारे होते हुए सोल्जर। जाओ प्रॉपर एड्रेस पर जाओ, प्रॉपर दस्तक दे, सही जगह के ऊपर दरवाजा खटखटाओ, तो तुमको सही जवाब मिलेगा। ये इल्मी गुफ्तगू हो जाती है दोस्तों। इन लोगों को जो बाहर दूसरे ममालिक में हम लोगों को कत्ल किया गया, उसमें तनाजा था, और वो तनाजे ने ऐसा जन्म लिया है कि आज तक भी बहुत अफसोसनाक बात है। मैंने कहा ना कि दिल जलता है, मैं नहीं कर सकूंगा आपसे बात। सुबह की नमाज तक भी आप कहेंगे तो मैं नहीं उठूंगा। मैंने भी हैदराबाद जमात में कह के आया हूं, छोड़ो बोला। तनाजा भी इसलिए कि है तो मिसरा बहुत दुखने वाला, इस घर को आग लग गई करके चला गया। आज भी मेरे गुजरात में बहुत से शहरों के अंदर दो दो जमातें आज भी मौजूद हैं, और उनमें भी इतने बड़े तनाजे जो आज जन्म ले रहे हैं वो चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। जिन्होंने इंग्लिश कुरान को कुरान बना किया, ये कुरान है ही नहीं। आज जो तनाजे चल रहे हैं, दो जमातें हम में हैं, हमारे में खोजा कौन, उम्मी के ऊपर बड़ा तनाजा है। अनपढ़ रसूल था, अनपढ़ रसूल था, उम्मी रसूल, अगरचे समझाने वाला उम्मुल कुरा, लेकिन अगर अनपढ़ था तो फिर इन आयतों को कहां ले जाएं कि हमने मबूस किया इस पैगंबर को इसलिए कि वो तुम्हें सिखाए। तुम खाली उस पहली वही पे लिख रहा हो, उसी के ऊपर बात करने बैठ जाते कि उम्मी का मतलब अनपढ़ है। अरे समझ में नहीं आता। मैंने बताया ना कि वो जिसको भेज रहा है पैदा नहीं कर रहा है। मैंने तो कभी तकरीरों में आपको नजर किया है जुमला कि खलीफा किसको बोलते हैं, जिसका कोई ऊपर हो ना, कि भाई वो उसका खलीफा है। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कब होगा, जब उसका कोई प्रेसिडेंट होगा। सही पढ़ रहा हूं ना, तो वो वाइस प्रेसिडेंट हो ना। जो जॉइंट सेक्रेटरी कब होगा, जब कोई का सेक्रेटरी होगा। खलीफा आदम को बोलते हो ना, पहला खलीफा, तो किसका खलीफा था ये मुझे बताओ, तो शायद समझ में आएगा। अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, मैं उस वक्त भी था, नूर मेरा उस वक्त भी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। और ये वो है खिलाफत का दौर के आदम को पहला खलीफा मानने वालों, हुजूर की पैदाइश पर जो जैसे भी किताबें सीरत अंबिया पे लिखी, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूं, लेकिन अक्ल का तकाजा है कि उसको लगाया जाए। ये एक तनाजा बना था हमारी गुजरात की जमात में, जहां इन लोगों को कत्ल कर दिया गया। रजब अली भाई पेथा जो है ना, इनके बेटे ने, बशीर इनके बेटे का नाम, मैंने उनकी निकाह में हदीसे किस्सा और कसीदे पढ़े। देखो मेरे बचपने की बातें बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बंगला यहां पर जो है ना हॉस्पिटल का, वो बशीर रजब अली भाई पेथा ने डोनेट किया। सही फरमा रहा हूं। और ये रजब अली भाई पेथा जो है, ये ईरान में अबदान में रहते थे, बशीर भी वहां पर थे। बाद में ये खुरमशेर के अंदर आए, तो मुझे खास, जब मैं इराक के दौरे पर था और नजफ अशरफ में था, तो इन्होंने खास, ये रजब अली भाई ने मुझे मदऊ किया कि आप खुरमशेर तक आ जाएं, मैं आपको अबदान ले चलूंगा। तो मैं बसरा से कश्ती में बैठकर सामने क्रॉस करना पड़ता है। ये इराक है, ये ईरान है। तो मैं कश्ती में बैठकर बसरा से सामने खुरमशेर आया। तब ये रजब अली भाई पे था, और ये बशीर भाई उस वक्त बहुत बचपना था। कराची में आने के बाद इनका शादी हुई, बशीर भाई की मरहूम हो गए। और इन्होंने ये हॉस्पिटल का प्लॉट अलॉट किया। हम बहुत उनके लिए दुआ गो है, जिन्होंने इस खोजा जमात के लिए काम किया है। परवरदिगार रब्बुल इज्जत माह सियाम का ये शायद आखिरी दिन हो, हमारे इस छोटे छोटे लफ्जों का मुकम्मल सवाब उनको अता फरमाना होगा। और हमारी कौम में ऐसे पैदा तो कर सकता है, तो कुन फयकून है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। मैंने तो कहा है कि मुझ जैसा एक तालिब इल्म इस वक्त कुन फयकून से आगे रिसर्च कर रहा हूं मैं। और मैंने मराजे से उस पर तकलीद करने के बाद, ये नहीं है कि मैं उनके पास बैठा हूं, मैंने उनके राइटिंग में लिया है लेकर
کہ یہ تو ترجمہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہور ہو جا، جملہ نظر کر رہا ہوں، کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا. یہ ترجمہ ہے قرآن کا، سورہ یاسین میں بھی ہے، ایک اور مقام پر بھی ہے. جیسے سجدہ 64 مقام پر آیا ہے، جیسے انشاءاللہ کتنی مقام پر آیا ہے. اس لفظوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا یہ چھوڑو، بحث بدل جائیں گے. لیکن یہ کن کہ ہور ہو جا، یہ ہو سے بھی آگے ہیں. معرفت کی منزلوں پر وہاں پہنچا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کا بھی وہ محتاج نہیں کہ وہ چاہے ہو نہیں، ہو بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ علمی ہے، بس اجازت چاہوں گا اس کے بعد ہاں نظر کرنا چاہتا ہوں، زندگی ہے تو منور سلیل آپ کو بتائیں گا. مکمل معرفت الہی، اللہ کی معرفت مکمل، کمپلیٹلی، ٹوٹل، 100% معرفت اللہ کی ذہن محمد میں بھی نہیں ہے. ریکارڈ ہو رہی تقریر پکڑ لیں مجھے. کتنا اونچا جملہ میں نے آپ کی خدمتوں کا نظر کیا ہے. وجہ کیا ہے رب ضدی علما کہنے کا؟ مکمل معرفت الہی اگر ذہن محمد میں آ جائے تو اللہ قید ہو جائے گا. اللہ قید ہو جائے گا، مقید ہو جائے گا. بندے کے ذہن میں رب آ گیا، مکمل معرفت اس کی آ گئی ہے. اور جو قید ہو جائے وہ خدا نہیں. یہی وہ فاصلہ ہے معراج کا، دو کمانوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، عبد و معبود کا، یہ وہی فاصلہ ہے کہ ذرا سا بھی آگے بڑھے، فرشتوں کی بات چھوڑے اور نزدیک اور دو کمان یا اس سے بھی کم. جملہ میری طرف سے نہیں دے رہا ہوں، اتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم. یہ انتہا تھی عبد اور معبود کے درمیان کی. اسی لیے 15ویں سیرے کا سبحان اللہ جو ذکر کیا نے، لے گیا وہ پاک ذات کہ جو اپنے عبد کو لے گیا، نہ محمد کو لے گیا، نہ رسول کو لے گیا، نہ نہیں اپنے عبد کو لے گیا، وہ لے گیا. سیرت کی کتابیں لکھنے والوں کبھی سوچو، جس وقت میرا نبی یہ کہے کہ میں گیا ہوں، جتنا پوچھنا ہو پوچھ لینا، جتنا اعتراض کرنا. وہ خود تو کہتا ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا ہوں. تو بات تو اس پر آئی ہے نا. موضوع سے ہٹ کر جملہ دوں، مجھے معاف کر دینا. میں کہتا ہوں کہ میں صبح لاہور میں تھا اور پیدل چل کے آپ کے پاس آ گیا. مانیں گے؟ آپ مانیں گے؟ منور بھائی جو کچھ جتنا آپ نے کہا وہ سب مان لیا، بس اب بہت ہو گیا. آپ صبح لاہور میں تھے، پیدل چل کے یہاں آ گیا. کون مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ منع کرو نا بھائی، بولو نہیں مانو گے نا بھائی. لاکھ مولوی، لاکھ ریسرچ، لاکھ عالم چھوڑ دیں، لاکھ القاب بلقاب سب چھوڑ، نہیں مانیں گے. عقل بھائی کیسی باتیں جھوٹی. کیا لاہور سے پیدل آپ آگے بیٹھ گئے جماعت؟ اب میں کہتا ہوں میرے جملوں کو تصدیق کرنا کہ میں لاہور میں تھا صبح، میں ہوائی جہاز میں بیٹھا اور میں یہاں آ گیا. آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب مانو گے نا بھائی؟ بولو نا، ہاں تو بولو. اچھا کیوں میری بات کو تسلیم کیا؟ مجھے سچا نہیں مانا ہے، ہوائی جہاز کی طاقت پہ بھروسہ ہے آپ کو. ہائے ہائے، پہنچو دوستو پہنچو. ہوائی جہاز کی طاقت پہ بھروسہ کر کے کہ یہ منور کو وہاں سے یہاں پہنچا سکتا ہے، ہوائی جہاز کی طاقت پر بھروسہ کر کے میری بات کو سچی مان لیتے ہو. اس کی لم یزل و لا یزال کی طاقت پہ بھروسہ کر کے معراج پہ کیوں شک کرتے ہو؟ پھر وہ لے گیا ہے. زنجیر کیسے ہلتی رہی، بستر کیسے گرم رہا، یہ کیوں وہ کیوں؟ ارے وہ کہتا میں لے گیا ہوں، قرآن ہے بھئی یہ. سبحان الذی اسری بعبدہ المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آغاز ہی 15ویں سورہ کا وہاں سے ہے دوستو. تو اب کم از کم میں چاہوں گا، میں نے یہاں پر قرآن آغاز سے سنا، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی ہے، کچھ نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کو یاد رکھیے گا. میں نے تاریخ کے اندر صرف 125 130 140 سال تک آگے بڑھ چکا ہوں. میری خود کی عمر 73 سال کی ہے. وہ کتابیں جو میری لائبریری میں میرے پاس ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے پاس نہیں ہوگی. دلجیت دھنجی کعبہ کا جو پوری لائف ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں. علامہ حاجی غلام علی کے جو راہ نجات نکالا انہوں نے، کیا کیا نہیں نکالا، اس پر تو پورا ایک لٹریچر میرے پاس ہے. اس کو میں نے آپ نے تک کہہ دیا کہ بڑا احسان ہے اس کا، اور شیخ محمد حسن نجفی کا بہت بڑا احسان. بمبئی کے اندر خوجوں کو، خوجہ جماعت کو جماعت بنانے کے اندر احسان ہے. یعنی جو سید تھے وہ خوجے کو درس دینے کے لیے اپنی زبان سیکھ کر آ گئے، بلکہ میں نے عاشق عباس کو گجراتی بولتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اندازہ تو کریں، میں نے اس کو گجراتی بولتے ہوئے دیکھا. آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے، جو یہ چینلوں کے اوپر ہمارے علماء انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں، آسان ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے یار. لیکن یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر گجراتی بھی صحیح نہیں بولی جاتی تھی. ان کی جو انسائکلوپیڈیا ہے نا، ان کے جو الفاظ ہیں نا، وہ لفظ آج میں اس میں نہیں دہراؤں گا، وہ لفظ آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے.
जो मैंने खुरासान में कहा था कि कभी जमीन पे झगड़ा, कभी जर पे झगड़ा, कभी इस पर लड़ाई, कभी उसके पास हुकूमत है तो झगड़ा, कभी इसके पास ताकत है। ये तमाम तनाज़े उस दौर के। आज तो इंसान बहुत आगे बढ़ चुका हुआ है, कहां का कहां चला गया है इंसान। आप सोचो तो सही कि आज का इंटरनेट आपको कहां पहुंचा रहा है। आज कुरान की तफसीरें इंटरनेट पे कितनी आपके पास आ चुकी है। थोड़ा सा वक्त निकालो अपने मजहब हक्का के लिए, कौम के लिए, जमात के लिए। मत सोचो कोई मुझे बुलाएगा। मैंने भी कहा कि मेरे पास अगर वक्त होता मैं बिल्कुल आता, शहीद हमीद हो जाने की जो लोगों ने यहां पर मैं आता आके, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि 1 रुपया अगर 54 4 बना भी लो ना तो वो 4 जगह तकसीम हो सकता है, 40 जगह तकसीम नहीं हो सकता। मैं जिन 4 वॉल मेरे बंद है और 1 वॉल पे जिंदा हूं, मेरा मालिक गवाह है। मुझे मालूम नहीं, मैंने पहले कहा मैं आप लोगों को सबसे पहले जाने वाला, मतलब मुझे इल्म नहीं, मगर मुझे मालूम है जाने वाला, मुझे जाना भी। ये मुआशरा, ये माहौल, बाहर के ममालिक ने, मुझे मत कहने दो, मेरे उस्ताद मोहतरम ने जुमला दिया, बाहर के ममालिक ने मुझसे कहा है, और ये राइटिंग के अंदर प्रिंट है, जमातों की प्रिंट है मेरी खोजा जमात की, कि आप दूसरा मुनव्वर नहीं ला सकते। मैंने कहा करोड़ों मुनव्वर वो पैदा करेगा। दुआ करो मेरी जमात सलामत रहे, मेरी कौम सलामत रहे। ये है तो हम लोग हैं, ये जमात नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग तकसीम हो जाएंगे, हम लोग बढ़ जाएंगे। सलाम करो उस शहीद को कि जिसने ये जुमला कहा है कि अगर मुझे खुदा ने जिंदगी दी मुनव्वर भाई, अखा ब्रिटो रोड में खोजा शिया शस्त्र बना। आज जो कुछ आप देख रहे हैं मरहूम मिन्नत है उसकी। आज जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें इनका हाथ बटाना है, तक़वियत देनी है। देखो तारीख अपने आप को नहीं झुकलाती। जुमले में तकरीर से हट के दे रहा हूं, लेकिन आपके काम के जुमले हैं, आपको एतराज के अंदर जवाब देने के काम में आएंगे। आज का तो सुधरा हुआ इंसान है ना, सुधरा हुआ इंसान है ना, मना कर दो अभी। एजुकेटेड इंसान है ना आज का, 100 साल से कम वाले सब 70 80 60, बाकी का बोनस छोड़। ये सुधरा हुआ इंसान आज इंसान का हाथ काटता है, पांव काटता है, आज़ा के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। तो फिर हमारी हकायक को क्यों झुठलाते हो कि मुस्लिम की लाश को 3 रोज तक बगदाद के पुल पर रखा गया? क्यों झुठलाते हो कि हुसैन और 72 की लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए? क्यों झुठलाते हो कि इतने संगदिल नहीं हो सकते? भाई ये मसायब के जुमले हैं, जाकिर पढ़ के जाता है मजलिस के अंदर। अब खत्म कर रहा हूं। हाँ, जाकिर मुझ जैसा जाकिर पढ़ के जाता है? जो सजा सुनाओगे मैं इस वक्त लेने के लिए तैयार हूं। अगर जाकिर बन के बोलूंगा, मेरा चौथा इमाम कह रहा है, उसको तो मानोगे? अली इब्न हुसैन का जुमला दे रहा हूं, देखो मैंने कहा रिकॉर्ड हो रही, पकड़ना। अगर हमारे जद अगर हमारे जद हमसे मोहब्बत का हुक्म देके गए ना, कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजर, अगर हमारे जद अदावत और दुश्मनी का हुक्म देकर जाते तो जितना जुल्म हम पर हुआ है ना, इससे बढ़कर जुल्म नहीं हो सकता। ले आओ शाम की तारीख, मैं तो जाते रहता हूं ना, हिस्ट्री है सीरिया की, खींचकर रस्सियों में हमको लाया गया। मजहब हक्का, सच्चा मजहब कौन थे? ये सुतून आप देख रहे हैं ना, भोजानी होल के सुतून नहीं थे, चौथे इमाम के पांव काबे के सुतून थे। बड़ी जिम्मेदारी से काबे का सुतून था अली इब्न हुसैन का पांव, जिसमें जंजीरें पहनाई गई। मसाइब का जुमला नहीं है, तारीख पर पढ़ा हूं आपके सामने। जंजीरें उतारी नहीं गई है, चौथे इमाम आबिद बीमार के पांव से जंजीरों को काटा गया। जब चाहे मुझसे तारीख मांगो। यजीद और रहम कैसी बातें कर रहे हो? दूध का दही बनता है, दही का दूध कभी नहीं बनता है। वो यजीद और रहम दोनों अलग अलग चीजें हैं। गले का तौक उतारा नहीं गया है, काटा गया। इंतहा है मजहब हक्का की, मजहब पंजतन के पाक की, मजहब शियों की, तशय्यो की। ये पंजतन पाक का, आले मोहम्मद का मजहब, हम खामोश है, चुप है। उस हमारे तेरे आखिरी हुज्जत के लिए इल्तिजा करते हैं। खुदा बंदा उसका ज़ुहूर जल्द से जल्द फरमा दे। परवरदिगार, हम अपने जिंदगी में जब उनका ज़ुहूर हो तो उससे पहले तुझसे ये दुआ मांग रहे हैं कि हमें इस काबिल बना दे कि वो अपने लश्कर में हमारा शुमार कर ले। ये जिंदगी की तमन्ना नहीं करते, हम तुझसे हयात की भीख मांग रहे हैं। ये तो जाने वाली चीज है, किसका रहा है जो हमारा रह गया हाथ पांव? हम जहनों में रहना चाहते हैं, हम इस वजूद को पैदा करना चाहते हैं। हम जाने के बाद भी कहां ये अशखास कब्र के अंदर है ना, कहां ये लोग जिनके मैंने फैजिद गिनाए, कहां है ये लोग?
आज क्यों जमात इनको याद करने के लिए बैठी है? ऐसे बन जाओ कि 150 साल के बाद भी कोई हमें याद करे कि क्या खिदमत देकर आदमी गया है। आज 130 साल की तारीख आई है, ये तो रहेगी क़यामत तक के लिए ये जमात है। खोजा जमात मिटने के लिए नहीं आई है, खोज तुमको करनी है, फाउंड करना है, ढूंढना है। दिस इज योर ड्यूटी, वी आर प्रेजेंटिंग टू यू, दिस इज योर ड्यूटी, यू फाउंड इज द वेयर द खोज। कहां है? आप तलाश करो कैसे कैसे लोग हमारे आए हैं, तब ये चीजें हम तक आई है, तब ये पैगाम हम तक आया है। और ये बड़ा एहसान है उन लोगों का कि जो नॉन खोजा थे, उन्होंने हमारी जमात के अंदर रहकर खिदमत दी है, हमारी लैंग्वेज को सीखा है, हमारी जबान को सीखा है। और बंबई के अंदर जो भी इस वक्त आपको जो भी दीनी मदारिस नजर आ रहे हैं, वो आयतुल्ला शेख मोहम्मद हसन नजफी और उनके पिदर बुजुर्गवार के मरहून मिन्नत है। और खोजा कौम के अंदर जो भी इस वक्त नजर आ रहा है, मुबल्लिग दीन जो भी, वो अल्लामा हाजी गुलाम अली हाजी इस्माइल के जैसा। मैंने नाम लेकर रशीद फरक से मैं शागिर्द ले चुका हूं, नहीं मिलेगा। दोस्तों कदर क्या करो, उनको कभी याद कर लिया करो। देखो बहुत हाथ जोड़कर मैं जमात से कहता हूं, लाइब्रेरी अपनी जगह के ऊपर है। मैं चाहूंगा इस जबान को जो नीचे लिखी गई है ना, उसको तो मैं इस्लाह कर दूंगा। अभी कोई बड़ी चीज नहीं, गलतियां हमसे होती, मेरे से हुई, मैं नहीं लिखा, यूं समझ लिया कुछ, वो इसका मानी नहीं है आगे पीछे करना। लेकिन इस जबान से मोहब्बत करो। मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी की मिसाल, उसकी मिसाल नहीं दी, उसका उनके खुद का कहा हुआ जुमला दिया है, अपनी जबान को मत भूलो वरना शनाख्त भूल जाओ। जिस जिसकी जो जबान है, हर जबान को बोलो, अपनी जबान को याद रखो। और वर्ल्ड फेडरेशन में की हुई तकरीर, मेरी खोजा पीड़ा शाशी जमात ने मुझे भेजा था, मैं गया था लंदन, और जाकर मैंने हसनैन वाजी के दरमियान बैठकर, हमें काउंसिलर चाहिए थे, मैंने कहा भीख थोड़ी मांगने आया है मुनव्वर, मैं अपना हक मांग रहा हूं मेरी जमात को, मुझे ज्यादा काउंसिलर चाहिए, और अगर आप नहीं दे तो मना कर दे, मुझे इनकार कर दे। उसके आगाज में मैंने गुजराती में तकरीर की कि तुम्हारी वर्ल्ड फेडरेशन की जो मादरी मदर टंग है ना, वो गुजराती है, और मैंने आगाज ही गुजराती तकरीर में किया था। 6 समय एक बनी काम में करता सीखो, मोजा ओमा डूबी ने उभरता सीखो, भूला एलो एक याद अपा ऊंचू सबक, जीवन ની तमन्ना છે तो मरता सीखो। खलकल मौत अवल हयात, पहले मौत को सीखो। मौत क्या है? हयात तुमको खुदा अता करेगा, मौत ही मर गया दाल नहीं है। पूरी तकरीर की 4 के बजाय उस वक्त जितने काउंसिलर हमने मांगे थे, मेरे साथ अल्ताफ हुसैन, फिदा हुसैन की करिया वाला मेरे साथ थे, कि भाई बस खलास। हसन वाजी ने कहा કેટલા જૂની છે મને બતાવો, પેલા બેઠા છે, પૂછો જમાતના માણસ, હું તો એક જમાતનો નાનો કાર્યકર એ લોકોની નુમાઇંદગી માટે આવ્યો છું, તમે ઇનકાર કરશો મને વાંધો नहीं, एक्टिविटी है हमारी जमात में। जितने टेबल कुर्सी पे बैठे ने सबने एक मुश्त होकर डैश बजाई, वीडियो मौजूद है हमारे, कि जो मांग रहे हैं दे दो, खोजा जमात हक है इन लोगों का, ये मेरी जमात है यहाँ की, किसी से हम पीछे नहीं है। वर्ल्ड फेडरेशन 1,40,000 की जमात बताए, 1,40,000 का स्टेटमेंट उनके पास होगा, हम 20,000 हो, हम 30,000 हो, फिर मेरे पास नहीं है। लेकिन बड़े में बड़ी जमात जो है ना दुनिया की, वो मेरी कराची की जमात है। दुरूद पढ़ दो ना दोस्तों इसके नाम पर, बड़े में बड़ी जमात मेरी कराची की जमात। उसके बाद आप बंबई को ले आए, बंबई से पहले आप महुआ को ले आए। तादाद के अंदर खोजा जमात की, खुदा एक एक खोजा जहां रहता हो ना, वहां 1,000 खोजों के बराबर है। जैसे गुजराती बोलने वाले गनी दही वाला, ये सूरत का रहने वाला था, मरहूम हो गया, बरसों पहले मेरे साथ सूरत में रहता था, अहमदाबाद से पहले आता है। मैंने बहुत सफर ही में मेरी जिंदगी खत्म हुई, जिंदगी सफर है और सफर मैं उनके यहाँ ठहरता था सूरत में। मिश्रा कहा करते थे, जहां वसे एक गुजराती ત્યાં વસે આખું गुजरात। एक गुजराती होगा आखा गुजरात वसेगा। आप लोग क्या, मेरे नजदीक कम से कम ये 500,000 का तो मजमा नजर आ रहा है। ये खाली कुर्सियां नहीं है, मेरी कौम बैठी हुई है, आज यहां नहीं बैठी है तो इसके जरिए से सुनेंगी वो। दुआ करो खुदा जमात को सलामत रखे। इलाही आमीन नहीं बोलोगे? कोई तकलीफ है जमात से तो बैठा हूं, मेरे मुखैर हजरात यहां पर बैठे। गलतियां सबसे होती है दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं एक छोटा सा मेंबर हूं इस जमात का और कुछ भी नहीं होंगे दोस्तों, मगर गलतियां सबसे होती है। देखो बदला लेना, मैंने कहा था मजलिस में, बदला लेना बहुत आसान है, माफ करना बहुत मुश्किल है। माफ करना सीखो, दर्सगाह आले मोहम्मद है, माफ कर दो, मजलिस हो जाएगी। आपको बहुत देर हो जाएगा कि आले मोहम्मद ने कहां कहां किन किन क्या। अभी 21वीं रमजान को आपने नहीं सुना मजलिसों में? कितना सुना आपने? पकड़ कर ले आए जब अली के कातिल को, देखो ये बहुत घबराया हुआ है, इसकी रस्सी ठीक, इसको छोड़ दो, इसको थोड़ा ढीला कर, ये बहुत घबराया हुआ मालूम है, कातिल है अली का। पढ़ो अली को, पढ़ो अली को, नारे लगाने वालों अली को पढ़ो, पढ़ो अली को। इस 2 लफ्जों में क्या छुपा हुआ है? और देखो, याद रखो बच्चों, हसन को वसीयत, अगर मैं जिंदा रह गया तो मुझे हक है कि मैं इसको माफ भी कर दूं। तुम चाहो, कब आया है मालूम है? ये 4 माह रमजान को पहुंचा है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कातिल नहीं था वो,
क्या क्या बातें मैं आपसे करने लगा हूं, क्या वक्त मैंने आपका ले लिया, मुझे माफ कर दे। मैं शायद आपके दरमियान ना रहूं, चले जाऊं, सो जाऊं कब्र में, कभी दुआ में फातिहा से याद आ जाऊं तो याद करना, कातिल कातिल नहीं आया है सामने, पस से पर्दा कोई और होता है, कत्ल करने वाला कोई और। याद रखा करो दोस्तों इन जुमलों को। जब आया अब्दुर्रहमान मुलजिम, अली ने कहा कि ये कातिल है। असहाबों ने कहा मौला हुक्म दे हम कत्ल कर दे। कहा अली का जुमला है, अली कभी भी किसी को भी उसके जुर्म से पहले सजा नहीं दे सकता, पहले सजा नहीं दे सकता। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको खुश रखे। मैं अपनी खुदा पीड़ा शिया इशनाशी जमात की कारकुनान का इसके इंतजाम का बहुत शुक्रगुजार हूं। माफी हाथ जोड़ के चाहता हूं, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। आप यकीन करो, अगर आप लोगों के पास बहुत मसरूफियात है आपकी, मुझे मालूम है, खुदा आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों की बड़ी मसरूफियातें हैं, मुझसे ज्यादा मसरूफ है आप लोग। खुदा इस दिनों के अंदर आखिरी रात है, खुदा इन रातों में आपकी इबादतों को कबूल कर ले। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैंने आपका बड़ा वक्त लिया है। बहुत माजरत के साथ मुरव्वत सलील जमात का और हमारे बिलखुसूस शाकिर भाई चांदी का बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने मेरा राब्ता किया। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दें दुआओं के साथ। शाम ले निशा थई तमाम ले, सूरज उगे छे आम ले, उगाड़ी तू कलाम ले, पधार छे इमाम ले, पीवानो छे मकाम ले, जे जोइए ते दाम ले, एक जाम दे एक जाम ले। एक काम करते सू, तू हाम थी रे काम ले, सदा अली नु नाम ले, नारे हैदरी सदा अली नु नाम ले। जो बन सामने अली ना करनी चौखट, ये चौखट अली नगरनी चौखटो, पवित्रतानी पनगटो, उगाड़े हक जा गुंगटो, प्रणयनी देखो काफिया देखो टे को कैसे दिया, प्रणयनी चाले रम जटो, अही मलक न जुर्मटो, तजी फलक न गुमटो, लिए चरण म करवटो, अली ना नाम नी। कितने अली बैठे हो गए यहाँ पर नाम के, अली के चाहने वाले हैं ना, वो भी अली है ना। अली ना नाम नी रटो, सुखो नीलावे जापटो, हरे जीवन न संकटो, रहे न कोई खटपटो। अल्लाह अकबर। क्या रे तू हाम थी रे काम ले, सदा अली नु नाम हैदरी। आखिरी बंद सुनो और इजाजत दो। गुजराती जबान की पहली मजलिस टेलीविजन के ऊपर खोजा पीढ़ाई शिया इशनाशी जमात ने मुनक्किद की, और वो पहली मजलिस खोजा पीढ़ाई शिया इशनाशी जमात की मैंने पढ़ी। जिस वक्त वो बड़े बड़े वो चलते थे फाइल्स, और ये रिकॉर्ड है जमात के पास भी और मेरे पास भी है अशरफ भाई। खोजा पीढ़ाई शिया इशनाशी जमात की टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, जब बागे जहरा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ जमीन खरीदी गई थी, उसकी हिस्ट्री है मगर नाम हो जाता जब जमीन, तो पहली मजलिस गुजराती जबान की मैंने पढ़ी गुजराती, और वो टेलीविजन के ऊपर रिलीज हुई है ना। बात ये आप आखिरी बंद सुन लो, इजाजत दो।
गगन गगन अली अली, भुवन भुवन अली अली, चमन चमन अली अली, सदन सदन अली अली। अब मैं सदन सदन बोलूं, अली अली आपसे सुनना चाहता हूं। कवन कवन, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। मेरी दिल की दुआएं, आंखों में आंसू भर के दुआएं दे रहा हूं। खुदा आपको आबाद रखे, आपकी औलादों को आबाद रखे। आपके बुजुर्ग जिंदा है तो उनको सेहतमंदी के साथ तूले उम्र अता फरमाए। आपने मेरी एक छोटी सी बात के ऊपर इतनी आवाज लगा दी। खुदा अली के सदके में, आले मोहम्मद के सदके में आपको आबाद रखे। कवन कवन, चमन चमन, सदन सदन, कथन कथन, जीवन जीवन, भुवन भुवन। अब मत बोलना, खुदानु छे वदन अली, रसूल नु छे मन अली। अब नारा देना, बतूल नु जीवन अली हैदरी। अजमत खातून जन्नत पर मिलकर दुरूद पढ़ दो, मिलकर दुरूद पढ़ो। खत्म कर दी तकलीफ, खत्म। रसूल नू छे मन अली, बतूल नू जीवन अली, बहार पंजतन अली, तू हाम थी रे काम ले, सदा अली नू नाम ले, सदा अली नू नाम। नारा हैदरी। ઘણો આભાર, અંતકરણ પૂર્વક હું તમારો આભારી છું। તેમને બંને ભાષામાં જહેમતો ઉપાડી।
علاوہ